السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے, بخیر و عافیت ہوں گے, انجوائے کر رہے ہوں گے اس خوبصورت سے دن کو. وی کال اٹ منڈے, اور منڈے میں صبح پاکستان میں میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور قریشی, اور میرے ساتھ ہیں میں ہوں رضوان علی احمد. اور آج کی ایک اور خوبصورت صبح آپ سب کی ہماری منتظر تھی, اور بہت ساری نئی امیدیں لیے, بہت سارے نئے چانسز لیے ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے, اور ایک پورے ہفتے کا آغاز ہوا ہے. اور منتھ کا آغاز تو گزشتہ ہفتے ہم کلوزنگ پر جب فرائیڈے کو ہماری ملاقات ہوئی تھی تب منتھ کا آغاز ہو رہا تھا. اب جو اس ہفتے کا آغاز ہوا ہے تو اس ہفتے کے لیے پورے ہفتے کی پلاننگ, یا پھر کم از کم آج کے دن کے لیے پلاننگ یہ لازمی ہے, کیونکہ پلان کریں گے تو ہمارے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ٹائم ٹیبل بنانا, ہم پریکٹس کیا کرتے تھے اس چیز کی کہ ہم ٹائم ٹیبل بنائیں گے اور اس ٹائم ٹیبل کو فالو کریں گے, خاص طور پر میٹرک ایگزام سے پہلے اور ایف ایس سی کے ایگزام سے پہلے. اور لیکن کہیں نہ کہیں اس میں بھی کچھ رد و بدل خود سے ہی کرنا پڑتا تھا, اور وہ پھر اس کو فالو کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ڈسپلن میں رہنا یہ سب سے ذرا قیمتی چیز ہے. اگر ہم نظم و ضبط برقرار رکھیں گے تو ہماری تمام تر چیزیں اپنے اکارڈنگلی اپنے ٹائم پر اور جیسے ان کو ہونا چاہیے ویسے ہی فال کر رہی ہیں. بالکل جناب, اور جس طرح رضوان نے کہا کہ ہم خود ہی اس میں کچھ رد و بدل کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے, اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب ہماری لائف کا پراپر ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے نا, جس طرح ہم نے روٹین میں بنایا ہوتا ہے, اور آپ کی شارٹ ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ میں نے 5 سال تک یہ اچیو کرنا ہے, 10 سال تک یہ اچیو کرنا ہے, تو آپ کی لائف تھوڑی آسان ہو جاتی ہے, تھوڑے سے جو ہے نا آپ آسانی سے. اور جو خاص طور پہ رضوان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ وہ ٹارگیٹ وقت سے پہلے اچیو کر دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بھی ٹریٹ دیتے ہیں, آپ اپنے آپ کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں, کچھ اپنے آپ کے لیے بھی خریدتے ہیں, اور اپنے آپ کو تحفے دینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. سم ٹائمز وہ تحفہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے ساری جو میری بزی روٹین ہے اس میں سے اپنے لیے 2 گھنٹے نکالنے اور کہیں اکیلے بیٹھنے ہیں نا رضوان. اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو نیند اتنی پیاری ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں 1 گھنٹہ مل جائے ہم اپنی نیند پوری کر لیں, اور ان کی نیند ساری زندگی پوری نہیں ہو رہی ہوتی. خیر جی, بہت سارے معاملات ہیں, بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں ویکینڈ پر, اور ان ڈیولپمنٹس کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم بات بھی کریں گے اور مختلف اینگل سے بات کریں گے, اپنے مہمانوں سے بات کریں گے, ان کا نقطہ نظر کیا ہے. خاص طور پر سب سے امپورٹنٹ چیز کلائمیٹ چینج کے حوالے سے COP 28, اور اس کا آغاز ہوا دبئی میں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اس حوالے سے خطاب کیا اور $100 ارب کی معاونت کے وعدوں پر فوری عمل درآمد کی ضرورت پر انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اقدامات پر عمل درآمد کے لیے اس معاونت کی ضرورت ہے. بالکل جناب, وزیر اعظم نے کہا کہ یہ معاونت ڈیولپمنٹ فائنانس اور پہلے سے قرضوں کے بوجھ تلے رہنے والے ترقی پذیر ممالک کے قرضوں میں مزید اضافے کی قیمت پر بالکل نہیں ہونا چاہیے. دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے ورلڈ کلائمیٹ ایکشن سمٹ میں $30 ارب فنڈز کے قیام کا اعلان کیا ہے, اور یہ $30 ارب کا جو فنڈ ہے یہ عالمی ماحولیاتی حل کے حصول کے لیے بین الاقوامی شراکت داری کو فروغ دے گا. یہ کس طرح ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا آگے جو ہے, خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپڈ کنٹریز کس طرح مل کے ماحولیاتی تبدیلی کو کیٹر کریں گی, کیا اس کی حکمت عملی ہوگی, اس فنڈ سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے, خاص طور پہ رضوان جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں, ترقی پذیر کنٹریز. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں ماہر ماحولیات محمد جمال الدین احمد قریشی موجود ہیں. آپ کو سب سے پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا. کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر, تھینک یو ویری مچ. جمال الدین احمد قریشی صاحب, پاکستان نے مطالبہ کیا شرم الشیخ میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا, پھر پورا سال مختلف ایونٹس ہوئے, پاکستان کی وزارت ماحولیاتی تبدیلی اس کی جانب سے پاکستان میں کانفرنسز ہوئیں, انٹرنیشنل فرنٹ پر ریزیلینٹ پاکستان کے نام سے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا جس میں ہم نے اپنے جو سیلاب آیا اس کی وجہ سے نقصانات ہوئے, ہم نے دنیا کو آگاہ کیا کہ ہم شراکت دار نہیں ہیں, ہماری پارٹیسپیشن نہیں ہے اس میں, لیکن ہم فرنٹ پر ہیں, فرنٹ فائٹر کے طور پر ہم نے نقصان برداشت کیا ہے. اب جب یہ فنڈ کے قیام کا اعلان ہوا ہے, پاکستان کا مطالبہ, پاکستان کی ایفرٹس کو تسلیم کیا گیا ہے دنیا میں؟ ایگزیکٹلی جی, میں آغاز ہی اس بات سے کروں گا کہ ہمارے پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے ٹیکنیکلی طور پہ پوری ورلڈ کو یہ آگاہ کیا ہے بڑے احسن طریقے سے کہ پاکستان چونکہ کاربن ایمیشنز یا کلائمیٹ چینج کا اتنا بڑا کنٹریبیوٹر نہیں ہے, اور ورلڈ کے ان 8 ممالک میں شامل ہے جہاں جو کلائمیٹ چینج کو بہت برے طریقے سے سفر کر رہے ہیں, افیکٹیز ہیں. اور اس میں انہوں نے جو ٹیکنیکلی طریقے سے جو یہ بات وہاں پہ پوری ورلڈ کو آگاہ کیا کہ ہم کلائمیٹ چینج میں جو سفر کر رہے ہیں اس میں ہمارا واٹر سکیرسٹی کا پرابلم اور ایگریکلچر پروڈکشن, یہ 2 مین امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہماری اکانومی ڈسٹربنس ہے. ہماری جو انڈس واٹر ہے
that is the main lifeline for the more than 90% of the people of the Pakistan. تو اس طریقے سے اس میجر ایشو کو وہاں پر ریپرزینٹ کرنا پرائم منسٹر کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے COP 28 میں پوری ورلڈ کی جو میجر لیڈرشپ وہاں موجود تھی ان کے سامنے اس ایشو کو بڑے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا. صحیح، جس طرح آپ نے کہا کہ واٹر اسکیرسٹی یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے ٹاپک ہے اور اس پر بات کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وی آر دا ڈائریکٹڈ افیکٹرز آف اٹ. واٹر ٹریٹیز بھی تو ہے پاکستان کی. اس حوالے سے کتنا ضروری ہے کام کرنا تاکہ یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہوتی ہے، بارشیں اچانک سے آ جاتی ہیں، فلڈز آ جاتے ہیں، اس پر بھی کام کرنا کتنا ضروری ہے؟ جی بہت ضروری ہے اس پہ، کیونکہ واٹر ہمارے ملک کا ایک مین اثاثہ ہے. آپ اگر پاسٹ 2 ڈیکیڈس میں دیکھیں مور دین 50% GDP جو تھی ہماری ایگریکلچر پروڈکشن پہ تھی، بالکل، اور وہ واٹر کے اوپر بیس کرتی تھی. اور اب ہم اس میں لیک کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے بہت ساری پالیسی ایشوز بھی فیس کیے اور اس کے علاوہ واٹر اسکیرسٹی کے پرابلمس بھی فیس کیے. تو پرائم منسٹر نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو $17 بلین کی جو ریپرزنٹیشن کی کہ ہمیں درکار ہے اگلے 10 سے 15 سال میں، تو ہم نے پانی کے مسئلے کو اور ایگریکلچر پروڈکشن کو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں یہ فنڈز جو ہیں وہ درکار ہیں ایز اے گرین ریزیلینس کے طور پہ. تو اس کے لیے جو ہمارے ہاں فلیش فلڈنگ کا ایشو ہے وہ سب سے میجر ایشو ہے. اور یہ جو فلڈنگ کا پرابلم ہے یہ نہ کہ صرف پاکستان کی طرف سے ریپرزینٹ کیا بلکہ جو انٹرنیشنل لیڈرشپ وہاں موجود تھی انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان، ہمارے ہمسائے ممالک ہو گئے، بنگلہ دیش ہو گیا، یہ وہ میجر کنٹریز ہیں جو فلیش فلڈنگ کو فیس کر رہی ہیں. تو اس کے لیے کلائمیٹ چینج کا جو فنڈ ہے وہ پاکستان اور یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کو اس کی جو فنڈنگ ہے یہ ہونی چاہیے تاکہ یہ آگے فیوچر پرسپیکٹ میں ہمارا جو میجر چیلنج ہے 2050 ہم آنے والی اپنی جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے اس کو کس طریقے سے وہ فیس کریں گے یہ پرابلمس، اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں یہ فنڈز جو ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اور آگے ہم نے اس جو پانی کی سٹوریج کا ہے معاملہ اس کو دیکھنا ہوگا، ویٹ لینڈس کی پروٹیکشن کو دیکھنا ہے. تو یہ سارے جو میجر ایشوز ہیں یہ ہمارے آگے، کیونکہ آگے آنے والے وقتوں میں کلائمیٹ چینج مور ایگریسو ہو سکتا ہے، تو یہ فنڈنگ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے اس پرابلم کو اوور کم تو کرنا. جمال الدین احمد قریشی صاحب، پاکستان نے تو گزشتہ برس بھی مطالبہ کیا تھا، پھر بہت سارے پاکستان نے G77 ممالک کے ساتھ مل کر یہ مطالبہ کیا تھا فنڈ کے قیام کے حوالے سے. بہت ساری اس میں ہرڈلز ہیں فنڈ کے قیام کے حوالے سے، خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے کہ فنڈ کا قیام ہو گیا. اگر اناؤنسمنٹ بھی ہو جاتی ہے، پاکستان نے مطالبہ کیا تھا G77 کنٹریز نے کہ $100 ارب کا یہ فنڈ قائم کیا جائے، اور اس پر بہت سارے ممالک تھے، زبانی کلامی اتفاق بھی کیا تھا. لیکن اب باقاعدہ $30 ارب کے فنڈ کا قیام کا اعلان کیا گیا ہے شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی جانب سے. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ پہلا سٹیپ ہے فنڈ کے قیام کے حوالے سے، اور ہمیں کیا فائدہ ہوگا پاکستان جو کہ افیکٹڈ ہے بطور افیکٹیز، پاکستان اور دیگر ممالک کو کیا فائدہ ہوگا اس فنڈ سے؟ بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے فنڈنگ کے حوالے سے، کیونکہ بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری اور اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کو بھی ہم فیس کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور فوری طور پہ اس کا عمل درآمد جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم جو ہماری واٹر کیپیسٹی بلڈنگ ہے، واٹر سٹوریج ریزروائرز ہیں، ہم اس کو کنسٹرکشن کی طرف لے کے جا سکیں. کیونکہ ہمارے ہاں جو ٹوپوگرافک فیچرز ہیں پاکستان کے اندر، خاص کر بلوچستان میں جہاں پر بریڈڈ ریور سسٹم ہے، ہل سے جو پانی بہت فلیش فلڈنگ کی طور پہ آتا ہے اور وہاں پر جو ساری آبادی ہے، ایگریکلچر ہے، وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے ناردرن ایریا سے جو فلڈنگ کا ایشو ہے وہ یہ سارا پانی جو ہے آگے ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہوگی، اور یہ فنڈز اسی کے لیے ہیں کہ ہم نے اپنی ہیبیٹیٹ ریسٹوریشن بھی کرنی ہے، ایکولوجیکل ریسٹوریشن بھی کرنی ہے، اور ہم نے اپنے جو پانی ہے اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ جو فنڈ آپ نے بتایا تقریباً 78 سے $100 بلین جو کہ وہ کیے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے، جو انہوں نے $30 بلین کا وہ کیا ہے، اعلان کیا ہے، یہ بہت مفید ثابت ہوگا. اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے آگے اب ہونی چاہیے پریکٹیکلی طور پہ تاکہ ہماری جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے اور ہماری جو اکنامک کرائسس ہیں وہ اوور کم کیے جا سکیں. صحیح جمال صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ ہیبیٹیٹ
ریسٹوریشن دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اسی طرح آپ نے ہمیں یہ بھی آگاہ کیا کہ کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے یہ فنڈ. لیکن جب یہ فنڈ کی آپ لگا رہے ہوتے ہیں, الوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو سسٹینیبلٹی کا فیکٹر کتنا ضروری ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ہیبیٹیٹ ریسٹوریشن میں یہ کتنا ضروری ہے؟ بالکل. ہمارا جو کنٹری کا جیوگرافک لوکیشن ہے, اس میں بہت سارے جو ہم کہہ سکتے ہیں کوریڈورز ایسے ہیں جہاں پر ہیبیٹیٹس موجود ہیں, جس میں ہمارے فارسٹ ہیں, ہمارے ویٹ لینڈز ہیں, ہمارے کوریڈورز فار دی ایوی فونا ہے, برڈس کی, مائیگریٹری برڈس کے حوالے سے. بالکل. تو اس حوالے سے اگر یہ ویٹ لینڈز, یہ فارسٹ, ان کو ریسٹور نہ کیا گیا تو ہماری جو بایوڈائیورسٹی ایکو سسٹم ہے اوور آل وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. جب وہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو آپ کے جو نیچرل ویلیوز ہیں, آپ کے کنٹری کے اندر جو نیچرل ایکو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس کو سسٹینیبلٹی اس کی تب ہی ہوگی جب تک ہم اس کو بہتر طریقے سے پروٹیکٹ نہ کر سکیں. ہماری جو پالیسیز ہیں اس حوالے سے اس کو بہتر طریقے سے ہم بروئے کار نہ امپلیمنٹ نہ کر سکیں. تو یہ بہت, کیونکہ ہمارے ہاں مور دین 25 نیشنل پارکس ہیں, ٹھیک ہے, ہماری کنٹری کے اندر جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں, تو اس کو پریزرو کرنے کے لیے یہ پالیسیز اور یہ فنڈز جو ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں. سر جمال الدین احمد قریشی صاحب, ایک تو ان ہیبیٹیٹس کے لیے اور جو پارکس ہیں, نیشنل پارکس ہیں, ان کے پروٹیکشن کے لیے جو جنرل اویئرنیس ہے وہ کتنی ضروری ہے. پلس پاکستان نے مطالبہ کیا, بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو اس میں حصے دار ہیں, 1.5 ڈگری تک ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے, اس سے بلو رکھنے کے لیے ایگریمنٹ ہوا, پیرس ایگریمنٹ. لیکن ہم نے 2023 میں دیکھا کہ ٹیمپریچرز نے 2 ڈگری سینٹی گریڈ کو ٹچ کیا. اس کی واپسی ممکن ہے, خاص طور پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں چین کی جانب سے. چین نے کاربن ایمیشن اپنے ٹارگٹ 2030 کے مطابق کاربن ایمیشنز کو بھی کم کیا ہے, لیکن باقی ممالک خاص طور پر یورپ اور اگر ہم بات کریں امریکہ کی, تو وہاں پر کاربن ایمیشن کے لیے وہ اقدامات ان وار فوٹنگز پر نہیں کیے گئے جس طرح سے پیرس ایگریمنٹ میں اگری کیا گیا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم پاکستان کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے, جس طرح میں نے پہلے ڈسکس کیا, اس حوالے سے بھی ایک ریجنل اور گلوبل امپیکٹ بھی ہے ہمارے ہم, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کاربن ایمیشنز اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح چائنا میں ہے یا امریکہ میں ہے یا اور بڑی انڈسٹریلائز کنٹریز میں ہے. تو ہم تو ابھی ایک پرائمری سٹیج کے اوپر ہے کاربن ایمیشنز کے حوالے سے, لیکن ہمیں اپنی اس انڈسٹریل جو پروڈکشن ہماری ہو رہی ہے اس کو, جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ گرین انڈسٹریل اس پہ آبجیکٹیو پہ لے کے آنا پڑے گا, تاکہ ہم جو ہماری ایمیشنز ہیں اس کو ٹھیک طریقے سے وہ کریں, کنٹرول کریں, ہمارے جو ویسٹ پروڈکشن ہے اس کو ٹھیک طریقے سے مینٹین کریں. اور جو ہمارا ٹمپریچر انکریز ہے, جو آپ نے بات کی کہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ انکریز کیا ہے, اس کے لیے ہمیں مزید جو ہمارا جو گرین کور ہے, یعنی کہ ٹری پلانٹیشن ہے, اس کو مزید ایکسپیڈائٹ کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ جو ہماری ملک کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ٹورزم کا, اس کے اندر بھی اویئرنیس لانی ہوگی, تاکہ جو لوگ ہیں ہمارے انوائرمنٹ کو وہ سمجھ سکیں, اس کو کس طریقے سے ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کو کس طرح اس کا خیال رکھنا ہے. یہ تمام چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اویئرنیس فرام پرائمری لیول ٹو اپر لیول, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ ان آل اسپیکٹس. جمال صاحب, آپ ماہر ماحولیات ہیں, ماحولیات کے حوالے سے آج کل پوری دنیا میں آواز اٹھائی جا رہی ہے, جو ماحولیاتی تبدیلی ہے بات کی جا رہی ہے, ڈفرینٹ ریسرچ پیپرز جو ہے اس پر لکھے جا رہے ہیں. اس کا تعلق انسان کی پرسنالٹی سے بھی ہے, سائیکالوجی سے بھی ہے, جو ہمارے روزمرہ کے رویے ہیں اس سے بھی ہے. ماحول پہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے, COP28 جاری ہے. آپ کا کیا خیال ہے, جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اگر ہم اس سے نمٹ لیں گے یا مینجمنٹ اس کی تھوڑی سی کر لیں گے, تو ہماری معیشت پر کیا اس کے اثر انداز ہوگا یہ چیز؟ جی بالکل, میں نے جس طرح پہلے آپ سے ذکر کیا کہ ہماری 90% جو پاپولیشن ہے وہ ایگریکلچر, ریور انڈس کی بیس کے اوپر, پھر اس سے آگے جو ایگریکلچر پروڈکشن ہے اس کے اوپر ریلائی کرتی ہے. ہمارا ملک اٹ سیلف, اس کی جو سوائل کی پراپرٹیز ہیں وہ اتنی زرخیز ہیں, اگر یہ پانی کی فراہمی بہتر طریقے سے ہو سکے تو ہم ایگریکلچر میں بہت زیادہ امپرومنٹ لا سکتے ہیں. ہمارے ہاں بہت زیادہ سکوپ ہے, ہمارا جو کسان طبقہ ہے بہت زیادہ محنتی ہے اس حوالے سے. تو ان کو جب یہ تمام ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں گے بہتر طریقے سے, اور ان کے اندر بھی اویئرنیس لانی چاہیے کہ پانی کا جو استعمال ہے
जिस तरह आजकल वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम आ गया है और इस तरह की बहुत जदीद चीज़ें आ गई हैं कि पानी का जो इस्तेमाल है वो एक अप टू लिमिट किया जा सके, यानी कि पानी की ज़्यादती भी ना हो, उसका ज़या भी ना हो। तो ये चीज़ें जो है अवेयरनेस लाने के लिए बहुत ज़रूरत है। तो इन्हीं चीज़ों की बेस पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी इम्प्रूव होगी, और हमारी जो फूड सप्लाई है, फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम ग्रो करते हैं अपनी कंट्री में, वो भी इम्प्रूव की जा सकती हैं, ताकि जो हमारे यहाँ फूड का इशू अगर खुदा न खास्ता इसके ऊपर काबू ना पाया गया तो वो आगे आने वाले वक्तों में नेक्स्ट डिकेड में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकते हैं। तो इस लिहाज से जो COP28 चल रहा है, पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से इसमें रिप्रेजेंटेशन भी की, और मैं इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि आगे इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो हम अपने जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से और वाटर स्कैर्सिटी के प्रॉब्लम्स हैं, इन पे हम बड़े अच्छे तरीके से काबू पा सकते हैं। हमारे यहाँ टेक्निकल लोग भी मौजूद हैं, हमारे यहाँ बहुत एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं, हम इंशाल्लाह इसको बड़े अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन अहमद कुरैशी साहब, आप स्टूडियोज़ में रहें। और क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ख़ासतौर पर COP28 के हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, जो तवक्कुआत हैं, और ख़ासतौर पर जो हमें इकदाम करने हैं, उस हवाले से काफ़ी पुरुम्मीद भी हैं। और ये खुशाइन बात है मानून कि हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और एक्सपर्ट्स की बात की तो वैसे ऑन अ लाइटर नोट, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या फिर हॉकी हो, कोई भी प्रॉब्लम भी कोई हो, चाहे वो वर्ल्ड इशू हो, एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ मौजूद होते हैं। आप किसी से भी कोई राय लें, आपको राय ज़रूर मिलेगी, कोई आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। और जब बात हो सियासत की, तो फिर सियासत के हवाले से कैसे ये हो सकता है कि उसमें लोग अपनी एक्सपर्टीज़ ना बताएं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम तज्जिया करते हैं, जिनसे हम सवालात पूछते हैं, उनकी हम राय लेते हैं, जो कि वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, सहाफ़ी होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मानूर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नो हाउ रखते हैं। सोशल मीडिया की वजह से, मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचती है, बहुत सारी दुरुस्त इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचती है। लेकिन उस मिस इन्फॉर्मेशन और दुरुस्त इन्फॉर्मेशन में से ही सही चीज़ जो है वो लोगों तक, अपने नाजरीन तक, सामीन तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जनाब। सो जैसे ही 8 फरवरी की डेट, इलेक्शन की फाइनल डेट अनाउंस हुई है, तो तब से जो है इलेक्शन के हवाले से, इंतखाबी मुहिम के हवाले से हम आपको अपडेट करें। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी है। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों की जो है हल्का बंदियाँ वो मुकम्मल कर ली गई हैं, और हतमी फहरिस्त भी इसकी जारी कर दी गई है। हर सूबे से भी बताया गया कि कितनी है, नेशनल असेंबली की कितनी सीट्स होंगी, सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन इस पर जो बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। जी, कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप जो इस वक्त आपके पास ओहदा है वो आप मुशीर हैं बराए कानून और पार्लिमानी उमूर, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुशीर के तौर पर। कंवर दिलशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, हल्का बंदियाँ हो गई हैं, हतमी फहरिस्त आ गई है, आबादी के तनासुब से अगर देखा जाए तो क्या मुकम्मल किया जाता है इसका, और जो तरीक़ाकार है इख्तियार किया गया है, अब इस पर तमाम पार्टीज़ की जानिब से जो हल्का बंदी से ख़ास तौर पर स्टेक होल्डर्स हैं, मुत्तफ़िक हैं इस पर? जनाब बड़ी अच्छी बात, आपका प्रोग्राम बड़ा शानदार है। लेकिन अभी मैं पैनलिस्ट की बात सुन रहा था कि बड़ी शानदार गुफ्तगू की, बड़ी पॉजिटिव बात की, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मुल्क को बहुत तरक्की कर सकता है अगर सही ईमानदार लीडरशिप आ जाए। पाकिस्तान को इस वक्त इंतहाई काबिल तरीन इंटरनेशनल लेवल का भी हो और पूरा पाकिस्तान की माशी मामलात को भी सुनने वाला उसके पास हो, वो लीडर चाहिए। इलेक्शन तो 8 फरवरी को हो जाएंगे, लेकिन असल बात है कि ऐसे लीडर की जरूरत है जो पाकिस्तान की सलाहियतों से फायदा उठाए। और बड़े अच्छे दोस्त ने बात की है कि हमारे पास सलाहियतों की कमी नहीं है। अब जहाँ तक ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो तो अपनी तमाम अपना रोड मैप तैयार कर चुका है। उसके लिहाज से जैसे आपने फरमाया कि हल्का बंदी हो चुकी है, और हल्का बंदी जो है हमेशा हर पार्टी को, स्टेक होल्डर को इतराज़ात होते हैं, क्योंकि हर पार्टी के उम्मीदवारों को अपने मफादात होते हैं। उन्होंने अपने हल्कों में काम किया होता है। जब वो हल्का बंदियों के तहत थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाती है, तरमीम आ जाती है, एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन से दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन में शिफ्ट हो जाते हैं वोटर्स, तो उन्हें इतराज़ात तो होता ही है कि उन्होंने अपने हल्के में काम किया होता है। लेकिन बहरहाल तमाम स्टेक होल्डर को एक मुतफिका तौर पर किसी पॉलिसी पर मुतफिक होना बड़ा मुश्किल तरीन मरहला है, और यही हल्का बंदियों का मामला हो गया है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन में पाकिस्तान ने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है।
और ये बड़ी अहम बात मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ जी कि जी जो जब इलेक्शन कमीशन जब डिलिमिटेशन के बारे में हातमी अपना जारी कर देता है नोटिफिकेशन, वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। उसके पीछे रूह ये है, बैकग्राउंड ये है कि अगर आप उनको चैलेंज करने की कानूनी रानी तौर पर इजाजत दे देंगे तो फिर वो हल्का बंदियां मुकम्मल नहीं हो सकेगी। लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपने मफादात के तहत चले जाएंगे और सारा सिस्टम जो है इलेक्शन का सबूताज हो जाएगा। तो इसलिए कानून में लिखा गया है कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, अपील कर सकते हैं। अपील करना हर शहरी का हक है, लेकिन उस अपील का जो असर अंदाज होना वो इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पे होता है कि उसको तस्लीम करें या ना करें। ये बात उनके अपनी सवाबदीदी पे होता है। लेकिन इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने जुलाई 2018 में जजमेंट दे दी थी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मुरतब करदा हल्का बंदियां किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। ठीक है उनका फैसला मुतहर्रिका फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। अब बाकी रह गए इंतखाबी फरिश्ते। इंतखाबी फरिश्ते भी तैयार हो गई हैं। आपने हल्का बंदी का जिक्र फरमा दिया, लेकिन हल्के इसके साथ साथ बहुत बड़ा इन्होंने प्रोजेक्ट है जो हमारी आवाम की नजर में नहीं आ रहा या सियासतदानों ने नहीं गौर किया। 12.5 करोड़ 80 लाख का वोटर लिस्ट जदीद तरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इन्होंने इंतखाबी फरिश्त जो है प्रिंट की है। नादरा के ताउन है, नादरा हमारा एक इंटरनेशनल इदारा है। तो वो जनाब इन्होंने, हमारे इदारे बड़े शानदार हैं, बड़े इंटरनेशनल लेवल के, बस इस लीडरशिप की जरूरत होती है, हमें अच्छा लीडर मिल जाए। तो ये इस लिहाज से ये मामला है कि वो भी बन गई है, खाई फरिश्ते भी हो गई हैं। आप सबसे बड़ा मसला जो होता है इलेक्शन का वो होता है रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट। रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट आखिरी लम्हे से इसलिए गुजर रही है कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो कंवर दिलशाद साहब, हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त तो अब जारी कर दी गई है, अब इसके बाद अगला मरहला क्या होगा? दराना रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं और साथ उसको वार्निंग भी हो गई तो तुम्हें इससे भुगतना पड़ेगा और तुम्हारा ही मुस्तकबिल हो जाएगा। कंवर दिलशाद साहब, आप हमें सुन सकते हैं? मैंने बात की। हेलो, कंवर दिलशाद साहब से बात कर रहे हैं। हल्का बंदियां मुकम्मल हो गई, हाथ में फहरिस्त आ गई है। बिल्कुल। अब इलेक्शंस के लिए वक्त मजीद करीब आता जा रहा है। अब अगला मरहला क्या होगा, मुख्तलिफ मराहिल होते हैं बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कंवर दिलशाद साहब ने बताई। कंवर दिलशाद साहब बताइएगा, अब अपनी बात कर रहे थे और अब महानूर भी जानना चाहती हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि अगला मरहला क्या होगा हल्का बंदियों के बाद। हल्का बंदियों के बाद शेड्यूल आएगा। अब सबसे बड़ी अहम बात जो है वो शेड्यूल जारी हुआ। उसमें हमारा जो कानून है सेक्शन 57 उसमें लिखा हुआ है कि जी आपने इलेक्शन जो कराने होते हैं वो 54 दिन के अंदर कराने, 54 डेज होता है। तो जो शेड्यूल जो आएगा वो 14 दिसंबर को आएगा। 14 दिसंबर को आने का इम्कान है ताकि वो 8 फरवरी तक 54 दिन हो जाए। तो आज मैंने अपने कॉलम लिखा, आप मेरा कॉलम पढ़े, पूरी डिटेल में लिख दी है। उसमें रिक्वेस्ट की है चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से कि 16 दिसंबर को आप शेड्यूल जारी ना करें। क्योंकि 16 दिसंबर को हमारा एक बहुत बड़ा सबूत है, मशरकी पाकिस्तान का दिन है, तो वो एक बड़ा मनहूस दिन है। तो आप 16 दिसंबर को ना करें, 14 को करते हैं, 15 को करते हैं। तो ये मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, आज मैं उनको मैसेज भी मैंने भेजा है कि आप 15 या 16 को ना करें, 14 को करते हैं, 15 को करते हैं, ताकि ये हमारा मनहूस दिन जो है ना 16 दिसंबर वो इस्तेमाल में ना आए। तो बहरहाल ये 14 और 15 के दरमियान जो है ये शेड्यूल जारी हो जाएगा और 54 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। और उसमें 28 दिन जो है वो हमारे सियासी जमातों को टाइम दिया जाता है ताकि आप अपनी कॉर्पोरेट मीटिंग करें, जलसे करें, रैली निकालें। उसमें कोई पाबंदी नहीं होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दिया जाएगा। जो ही शेड्यूल जारी हो जाएगा फिर कोई सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत उनके मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती, बशर्ते अगर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब करने की कोशिश की। वो तो हर हुकूमत का फर्ज है कि लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल करे। लेकिन सूबाई हुकूमतें जो हैं, अब मैं अपने खुद पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, पूरी गवर्नमेंट हमारी जो है मोहसिन नकवी साहब जो है चीफ मिनिस्टर, वो सारी कंस्ट्रक्शन पे लगे हुए हैं। जो 10 महीने में कंस्ट्रक्शन वो कर दी जो साबका हुकूमत ने 10 साल में नहीं की। पूरा पंजाब का नक्शा बदल दिया उन्होंने। तो वो तो सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है, हमारी सूबाई काबीना का किसी मेंबर का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। हमने तो सारा काम देखना है गुड गवर्नेंस पर। इलेक्शन करवाना इलेक्शन की पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, पूरी मामलत कर दी जाएगी इलेक्शन कमीशन को। सूबाई गवर्नमेंट पूरी मामलत करेगी पुलिस के लिहाज से, रेंजर के लिहाज से,
ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से पूरा मानवत करेगी, लेकिन एक तरफ अलग थलग रहेगी, किसी सियासी मामले में उनकी मुदाखलत नहीं होगी। तो ये तो सारा मामला चल रहा है। ये आप दुआ करें कि 8 फरवरी को इलेक्शन हमारा पुरअमन हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और पाकिस्तानी कौम को अच्छी लीडरशिप है। हम तो अच्छी लीडरशिप की दुआ कर रहे हैं। हमें अच्छी लीडरशिप की जरूरत है। हमें किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई पार्टी भी आए, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए मुफादात के तहत जो करप्शन, अकरबा नवाजी, मनी लॉन्ड्रिंग, इससे हमें निजात मिल जाए। सही। कंवर दिलशाद साहब, जिस तरह आपने कहा कि 14 या 15 दिसंबर को शेड्यूल जारी होगा, तो उसके बाद ऑब्वियसली टाइम भी कम होगा। पाकिस्तान के जो इंतखाबी अब देखा जाए कि इंतखाबात आने वाले हैं, तो जो इंतखाबी मुहिम है पाकिस्तान में, डिफरेंट पार्टीज़ हैं, ये कैसा आपको नज़र आ रहा है ये सारा माहौल? और आपको क्या लगता है कि इसमें जो तेज़ी आएगी उसमें क्या हिकमत अमली होगी डिफरेंट पार्टीज़ की? क्योंकि वक्त कम होता है और हर पार्टी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट करना चाह रही होती है। तो कैसे देखते हैं इस माहौल को? वो ठीक है, वो जब हमारा पुरानी रवायत है कि जो ही ये शेड्यूल जारी हो जाएगा तो हम कुछ बड़ा टेक्निकल मामला होता है ना। सियासत पार्टियों को चैन मिलेगा जब उनके कागजात नामजदगी की जो आखिरी हतमी लिस्ट जारी हो जाएगी उम्मीदवारों को जिन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है। उसके बाद 28 दिन मिल जाते हैं उनको। 28 दिन में वो जलसे, जुलूस, रैली जो मर्जी करें, उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होती। ये 28 दिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन में बड़ी भारी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी ये है कि 1 लाख पोलिंग स्टेशन है और इसके बाद 15 लाख का इलेक्शन का अमला है। आप अंदाजा लगा लें, एक पोलिंग स्टेशन पे होता है 13-14 आदमी, तो तकरीबन 13-14 लाख, 15 लाख साथ रिजर्व रखे जाते हैं, तो 15 लाख का अमला होगा, रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। इसके बाद सारा पोलिंग स्टेशन की इमारतें देखी जा रही हैं, वो तो तमाम चेक कर ली है। तो 50,000 हमारे मुल्क के लेवल के ऑब्जर्वर भी चेक करेंगे। कोई 150-200 जो है वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी आ रहे हैं, कुछ तकरीबन 250-300 जो है मीडिया भी इंटरनेशनल आ रहा है। ये सारी चीजें वजारत खारजा, इलेक्शन पाकिस्तान ने सबको देखना है, गौर है, सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है पाकिस्तान को। दुनिया की निगाहें जो है दोस्त मुल्कों की हमारे इस इलेक्शन पर लगी हुई है कि अच्छी क़यादत आएगी ताकि हम आइंदा आपको सरमायाकारी कर सकें। आइंदा की सरमायाकारी जितने बड़े बड़े माहदे हुए कुवैत में या यूएई में हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ गए हैं, उस पर अमल दरामद जब ही होगा जब पाकिस्तान के इंतखाबात को सब तस्लीम भी कर लेंगे और अच्छी लीडरशिप आएगी। जब कंवर दिलशाद साहब, आप साबिक सेक्रेटरी भी हैं इलेक्शन कमीशन के, आप इस वक्त मुशीर हैं कानूनी और पार्लिमानी उमूर के, वज़ीर आला पंजाब के। जमहूरी निज़ाम को, ख़ासतौर पर इलेक्शन प्रोसेस को, इलेक्टोरल प्रोसेस को आपने बहुत करीब से न सिर्फ देखा है बल्कि उसमें किरदार भी अदा किया। पेशा क्या समझते हैं इलेक्शन 2024 जो इस वक्त इलेक्टोरल प्रोसेस का आगाज़ हुआ है, हम जमहूरियत की जानिब मज़ीद एक कदम बढ़े हैं? चाहे सियासी जमातों की जानिब से माजी में भी एतराज़ात आते रहे, जो हारता रहा वो इल्ज़ामात लगाता रहा, कुछ सियासी जमातों की जानिब से पहले से ही फोर्स करते हुए अपने शिकस्त को या फिर अपने जो सियासी माहौल है उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन पर वो बार डालते रहे, वज़न डालते रहे जी कि शायद इलेक्शन कमीशन में कुछ गड़बड़ है। कैसे आप इस पूरे सियासी हिकमत अमली को जो सियासी पार्टी की जानिब से पहले ही शुरू कर दी जाती हैं और बाद की जो इल्ज़ामात या बयानबाजी होती है? सियासी जमातों को भी चाहिए कि अपनी मुहाजराई से गुरेज करें, एक दूसरे पर किरदार कुशी ख़त्म करें। बहुत किरदार कुशी कर ली हमने तकरीबन 60-70 साल से किरदार कुशी समझते हम थके, यकीन ही नहीं करते, हम किताबें भी छप चुकी हैं इन पर। अब अपना काम करें, मफाहमत के तहत करें। आप जिस पार्टी ने इलेक्शन में हार जाए उसको, उस हारने वाली जमात को तस्लीम करें, जैसे तमाम दुनिया के जमहूरी मुल्कों में होता है। बेशक गड़बड़ होगी, बेकायदगी छोटी मोटी तो पोलिंग स्टेशनों पर बेकायदगी, बेज़ाब्तगी जो वो उम्मीदवार कराते हैं, इसमें कोई इदारे का, हुकूमत का ताल्लुक नहीं होता, वो उन्होंने जिंदगी और मौत का खेल खेल जाते हैं। उसमें वो हर तरह की मेल प्रैक्टिस, करप्ट प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। वो इंडिविजुअल होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए बाकायदा हमारे इदारे मौजूद हैं। इसके साथ इदारे का मतलब ये है कि पूरी वहाँ पुलिस भी खड़ी होगी, रेंजर भी होगी, आर्मी गैर आर्मी होंगी, ताकि करप्ट प्रैक्टिस जो है वो ना होने दें। ये सारी चीजें सबके होने के बावजूद भी इलेक्शन में अगर कोई पार्टी हार जाती है तो उन्हें तस्लीम करना चाहिए। जलसे जुलूस से आप किसी पार्टी की मकबूलियत का अंदाजा नहीं कर सकते। वो जो सुनने जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनका मंशूर सुनते हैं, फिर उनकी मर्जी होती है उस पोलिंग स्टेशन पर उस शख्स को वोट देने की कोशिश करते हैं, कामयाब कराने की कोशिश करते हैं जो उनके मसाइल को हल कर सके।
وہ یہ نہیں سمجھتے وہ کس پارٹی سے ہے، وہ ہوتا ہے ایسا شخص، ایسا امیدوار جو ہمارے روزمرہ کے مسائل، جو اصل ہمارے مسائل پاکستان کی بدقسمتی سے تھانے اور کچہری کے ہوتے ہیں، تو وہ اسی لحاظ سے وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کسی جلسے جلوس پہ نہ جائیں آپ. جلسے تو جماعت اسلامی کو بھی دیکھ لیں، سب سے کامیاب جلسے ہوتے ہیں ان کے، لیکن 4 سیٹیں ملتی ہیں بیچاروں کو. اسی طرح ہماری جب پاکستان بن رہا تھا تو جو بڑے بڑے جو مذہبی رہنما تھے ان کے لاکھوں کے جلسے ہوتے تھے، 1 سیٹ بھی نہیں لے سکے جب الیکشن ہوا پاکستان کے بارے میں. تو یہ سارے نہیں دیکھا جاتا. پولیس اسٹیشن پر جو امیدوار کھڑا ہو جاتا ہے نا ووٹر، وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ووٹ کاسٹ کرتا ہے. ووٹر بہت عقل مند آدمی ہے، وہ اپنا سمجھتا ہے کہ میرے مسائل حل کرنے والا کون سا آدمی ہے. جی تو یہ سب چیزیں سیاسی جماعتوں کو اپنے جلسے کی مقبول پہ نہ جائیں، اپنا منشور پیش کریں، بتائیں کہ عوام پہ کتنا اعتماد ہے. بالکل، بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب. آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر ہیں برائے قانون اور پارلیمانی امور کے. آپ نے وقت نکالا پروگرام میں، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، اپنی رائے کا اظہار کیا. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. کنور دلشاد صاحب سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا، خاص طور پر الیکشن کمیشن کے حوالے سے یا پھر الیکشن کے معاملات کے ضمنی انتخابات ہو یا پھر بہت سارے سیاسی جماعتوں کی جانب سے، امیدواروں کی جانب سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو اس پر بڑی توانا اور بڑی جاندار آواز بھی ہیں اور بہت زیادہ انفارمیشن بھی ہمیں ملتی ہے کنور دلشاد صاحب سے جب بھی بات کرتے ہیں. آج صبح بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی. جب ہم اسٹوڈیوز میں آئے تو مانور سے ایسے بات ہو رہی تھی کہ کون آ گیا. تو میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ خواتین ہم سے ایک قدم آگے ہیں اور اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو جو لیوریج ہے خواتین کو حاصل وہ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، اور دوسرا یہ کہ جو ہمت ہے، جو عزم ہے اور جو حوصلہ ہوتا ہے، پھر جو قوت برداشت ہے. محبت کا ایلیمنٹ تو ہے ہی ہے، لیکن جو قوت برداشت اور ہمت ہے، یہ خداداد صلاحیت ایسی ہے جو کہ تمام خواتین میں موجود ہوتی ہیں. ہاں، وہ اس سے استفادہ کریں یا نہ کریں، یہ انڈیویجول فیکٹر ہو سکتا ہے. بالکل جناب، اور خاص طور پہ اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے، چاہے وہ خاتون گھر میں ہے، کسی آفس میں ہے، تو وہ یہ ہمت بھی رکھتی ہے، یہ کوالٹی بھی رکھتی ہے کہ ان لمیٹڈ ریسورسز کو کس طرح یوٹیلائز کرے اور کس طرح آگے بڑھے. ایک ایسی خاتون کی کہانی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی خاتون کی اچیومنٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. یہ باہمت خاتون جو ہیں وہ برطانوی نشریاتی ادارے نے دنیا کی 100 بااثر اور متاثر کن خواتین کی فہرست میں ان خاتون کا نام شامل کیا ہے. 2 پاکستانی خواتین ہیں، جن میں سے جو شمشال وادی سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے، آپ امیجن کریں، ہماری اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مویشی بان ہے. افروز نما ان کا نام ہے اور اس فہرست میں یہ شامل ہیں. 3 دہائیوں سے 30 برس سے بھیڑ بکریاں چرا رہی ہیں اور جو انہوں نے ہمت اور خواتین کی اسٹرینتھ کے لیے جو کام کیا ہے اپنے علاقے میں، اس کو تسلیم کیا گیا ہے برطانوی نشریاتی ادارے کی جانب سے. نہ صرف اس وادی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں بلکہ پورے پاکستان کی خواتین کا نام روشن کیا. انہوں نے پاکستان کی خواتین کا سر بلند کیا ہے. خاص طور وہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے خواتین کو لے کر پاکستان کے حوالے سے، اس کی ایک دفعہ پھر عالمی سطح پر نفی کی ہے افروز نما نے. شمشال وادی میں جانوروں کو چرانے کا کام سیکھنے کی روایت جو ہے وہ اب زوال پذیر ہے. بہت ساری روایات زوال پذیر ہے، لیکن اب یہ جو روایت ہے اس کو بھی زندہ رکھنے میں افروز نما نے اہم کردار ادا کیا ہے. بالکل جناب، اور اس سے جو پیسے حاصل ہوتے ہیں وہ ان پیسوں کو بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچ کرتی ہیں. اور یہ بہت ایک بڑی، کہتے ہیں نا، آپ کی ویژن کیا ہے، دیٹ از اے ہیوج تھنگ، دیٹ از اے ویری بگ تھنگ، کہ جو آپ کے پاس ریونیو جنریٹ ہوگا اس سے آپ کیا کریں گے. اور اسی طرح قومیں ترقی کرتے، اسی طرح معاشرے آگے بڑھتے ہیں. اور مانور، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ بہت دفعہ بات کرتے ہیں کہ کسی کے دماغ پہ کچھ بھرا ہوا ہے، آپ کے دماغ میں کیا ہے، بالکل، ایکچولی کچھ ہو سکتا ہے دماغ میں اور ہو بھی سکتا ہے سم ٹائمز، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا دماغ بالکل فٹ ہے نا. دماغ اور سر میں ویسے فرق ہوتا ہے. بہرحال جی، دماغ اور سر میں ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ ایک مریض نے، ایک ویتنامی شخص نے یہ شکایت کی کہ اس کے سر میں لگاتار شدید درد رہتا ہے. تاہم اب جو چیز سامنے آئی ہے ڈائگنوسٹک کے بعد، وہ یہ ڈائگنوسس کے بعد کہ روایتی لکڑی کے جو چاپ سٹکس ہوتے ہیں، جو چینی چمچ جنہیں کہا جاتا ہے، چمچے، وہ دماغ میں سے، سر میں سے برآمد ہوئے ہیں. اور یہ سم ٹائمز دیکھیں ہمیں پتہ نہیں جو ہوتا کہ روٹ کاز کیا ہے، لیکن the very 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 unfortunate situation is that کہ یہ جو شخص ہیں ویتنام کے، ان کے جو ہے سر میں 5 ماہ سے درد تھا اور ان کی جو تھی نظر متاثر ہوگی، بینائی چلی گئی. اور جب ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو ان کو پتہ چلا کہ کھوپڑی میں جو ہے ایک لکڑی کے چمچ کی
स्टिक मौजूद है और हमारी स्क्रीन पे वो स्टिक आपको दिखाई भी जा रही है और ये सिटी स्कैन जब करवाया गया तो उसमें पता चला कि ये सब हुआ है। अच्छा, वैसे ये हैरत अंगेज़ चीज़ है कि ये उसके दिमाग तक पहुंची कैसे, कहाँ से पहुंची, क्योंकि नाक से उसके दिमाग तक जाने वाली दो चीज़ें भी दिखाई दी। और अब हम कुछ बात करते हैं सऊदी अरब के हवाले से, जहाँ पर कदीम और बड़ा दस्ती कुल्हाड़ा दरियाफ्त हुआ है और ये बहुत ही कदीम है। इसकी तारीख अब जो बताई जा रही है आसार कदीमा के माहिरीन की जानिब से कि ये उनका मानना ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा दस्ती कुल्हाड़ा है और एक बैनुल-अक़वामी तहकीकी टीम ने इस कुल्हाड़े को कुर्रा के मैदान से दरियाफ्त किया है और बताया जा रहा है कि 20.2 इंच यानी कि 51.3 सेंटीमीटर तवील है ये। बिल्कुल जनाब, ये इतना वजनी होने के बावजूद भी इसको दोनों हाथों से आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि कदीम भी है। तो हम ये भी देखते हैं जब पुराने ज़माने में कोई भी चीज़ डिज़ाइन की जाती थी तो वो ऐसे डिज़ाइन की जाती थी कि उसको आसानी से उसका इस्तेमाल भी किया जा सके। लेकिन अभी तक जो है ये इसको अभी तक इस पर पता नहीं चलाया जा सका कि ये एग्जैक्टली जो है ये कितने साल पुराना है। जैसे हम कहते हैं ना 1400 साल है, 1500 साल है, लेकिन एग्जैक्टली ये कितने साल पुराना बाकी है। जो औजार दरियाफ्त हुए हैं वहाँ से उसके बारे में ख्याल ये किया जा रहा है कि एस्टिमेटेड रफ है वो ये है कि 2 लाख साल पुराने हो सकते हैं ये औजार। बिल्कुल जनाब। अच्छा रिजवान, जब हम छोटे थे तो बचपन में हम बड़ी डिफरेंट सी ना मूवीज़ देखते थे, फिक्शनल स्टोरीज़, और हमें लगता था कि जो हमारे घर में सीवरेज का पाइप आ रहा है या तो इसमें कोई वेल मछली होगी या तो इसमें कोई मगरमच्छ होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जो बड़ी डिफरेंट सी खौफनाक सी होगी। इसी तरह हमें लगता था कि अभी हम बल्ब बंद करेंगे किचन का तो पीछे से कोई भूत आ जाएगा। ये जो चीज़ें हमें दिखाई जाती थी, अब इनमें से कुछ चीज़ें बड़े हो रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि वाकई ही सच भी साबित हो रही है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के सीवेज पाइप में मगरमच्छों की जो मौजूदगी है ना वो सच निकल आई है और वहां काम करने वाले मुलाजिमों ने मगरमच्छ को ना सिर्फ देखा है बल्कि इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप हमारी स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं। रोबोट कैमरे की मदद से ये वीडियो बनाई गई है और देखा जा सकता है कि कीचड़ से भरे इस पाइप में एक मगरमच्छ मौजूद है जो कि बड़ा ही साकत और बड़े ही बगैर शोर किए उस रोबोट कैमरे को देख के आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब भी मूव कर रहा था। और ये जो सीवरेज पाइप है, खैर ये तो बहुत बड़े पाइप है जो मेन लाइन पाइप्स की होती है सीवरेज की, और ये मगरमच्छ आप देख सकते हैं किस तरह से ये रेप्टाइल है। और ये बहुत सारी अफसानवी कहानियाँ होती हैं जिनको सच होते हुए ज़रा वक्त नहीं लगता, इसलिए कहते हैं जो गुमान करें अच्छा करें, जो सोचें वो अच्छा सोचें, ताकि आपको खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ है वो खौफजदा ना कर सके। बिल्कुल। अच्छा रिजवान, ऐसे ही तो होता है ना कि जो चीज़ें बचपन में हम अफसानों में पढ़ते हैं वो बड़े होकर हमें हकीकत में नज़र आ जाती हैं, लेकिन इसके लिए आपकी उम्र तवील होना ज़रूरी है। और जब आप उम्र की काफ़ी बहारें देख जाते हैं, और मैं तो ये भी कहती हूँ कि बहारों के साथ सिर्फ बहारें नहीं होती, ख़ज़ाएँ भी देखनी चाहिए ताकि आपको जो है ना आप देख सकें कि लाइफ बड़ी बैलेंस्ड है। एक दफ़ा जो एक चीज़ आपको अजीब लग रही होती है, अगली दफ़ा जो है वही चीज़ आपको लाइफ में नज़र आ रही होती है। अच्छा, मतलब बाहर देखें या खज़ां देखें, सर्दियाँ और गर्मियाँ ना देखें? सर्दियाँ और गर्मी एक्सट्रीम वाली जो है ना वो ज़रा टफ होती है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं अमेरिका, जहाँ पर एक हरन की शामत आई तो मुंजमद झील में जाकर वो फंस गया। और ये एक ऐसा मंजर था जहाँ पर फायर फाइटर्स ने तवील जद्दोजहद के बाद उस हरन को बचा लिया। एक भूला भटका हरन जो है वो झील की तरफ आ निकला और इसमें फंस कर रह गया था। अब देखिए अक्सर हमने सुना है कि दलदल में लोग फंसते हैं या फिर जानवर फंस आते हैं, लेकिन उनको रेस्क्यू किया जाता है। राउंड द ग्लोब हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड लाइफ की जानिब से और बहुत सारे दर्द दिल रखने वाले लोगों की जानिब से इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई आबी मखलूक है, मछली है, मगरमच्छ है, टर्टल्स हैं, अगर ये कहीं पानी में फंस जाते हैं, ख़ासतौर पर माहौलियाती आलूदगी का शिकार होते हैं, तो उनको किस तरह से वो रेस्क्यू किया जाता है। अब वही मुजाहिरा हमने देखा है कि इस हरन को रेस्क्यू किया गया है और देखिए किस तरह से इसको रेस्क्यू किया गया है जिससे अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, और ये मुंजमद झील है और बर्फ ही बर्फ है। अच्छा, जैसे रिजवान हम अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आपने रेस्क्यू करने के हवाले से बात की इस हरन को, लेकिन बात यह है कि लोगों ने फौरन रेस्क्यू टीम को कॉल की। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे कोई ऐसी चीज़ हो रही हो और हम क्या करते हैं कि जानवरों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि सड़क के बीच में अगर उसकी एक टांग टूटी हुई है, वहाँ पे कोई बिल्ली गिरी हुई है, तो हम उसको ना तो खुद रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं ना रेस्क्यू टीम को बुलाते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना इंसानियत का जज्बा रखने वाले लोग हर जो ज़ीरू है उसके दर्द को समझते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। और रिजवान, जिस तरह हम बात करते हैं ना इंसानी हकूक़ के हवाले से, इसी तरह
तरह जो है पूरी दुनिया में जानवरों के हकूक़ के लिए भी काम किया जा रहा है, एंड आई एम सो ग्लैड टू शेयर कि पाकिस्तान में भी जानवरों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है और अब लोगों में अवेयरनेस भी इस चीज़ की क्रिएट की जा रही है। और यही अब सबसे अच्छी बात है कि इंसान को दर्द दिल के लिए ही पैदा किया गया है और इंसान किस तरह से मुख्तलिफ है। नो डाउट कि अब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें प्रिवेल करती हैं, एहसास की बात की जाती है तो वो प्रिवेल करता है मानूर, और उसका मुजाहिरा हम देखते हैं कि जो भी जितने भी जी रूह हैं वो भी ख्याल रखते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, इससे कबल भी आती रहीं, और जो सामने आती हैं चीज़ें, तो ये हरन को रेस्क्यू किया गया है। आप भी कोशिश करें, अगर आपके पास कुछ है ऐसा और आप कर सकते हैं मदद, चाहे वो जानदार है, वो जानवर है या फिर वो इंसान, उसकी मदद ज़रूर कीजिए। बिल्कुल जनाब, मदद करने के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तानी भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और पाकिस्तानी मईशत के लिए भी काम किया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज एक दफ़ा फिर एक नया रिकॉर्ड, हफ्ते का आगाज़, पहले दिन कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और पहला एक घंटा 770 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 62,000 इंडेक्स की नफसियाती हद को अबूर किया है। 100 इंडेक्स ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक नया रिकॉर्ड। ज़मीर अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। ज़मीर, बताइएगा, एक दफ़ा फिर स्टॉक एक्सचेंज में एक नया रिकॉर्ड बना है, निगरान हुकूमत, अस्करी क़यादत की पॉलिसीज़, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में रोज़ बरोज़ तेज़ी होती जा रही है, जिसकी मेन रीज़न यही है कि जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनसे इन्वेस्टर्स काफ़ी मुतमईन हैं। और आज भी अगर देखा जाए कि जो IMF की टेक्निकल टीम यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ जो हुकूमती टीम के मुज़ाकरात हो रहे हैं, ख़ास करके बजट के हवाले से, तो उस पर भी काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है और एक लायमल तैयार किया जा रहा है ताकि जो डेफिसिट है उसको कम से कम किया जाए और रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसके अलावा हमारे लिए एक और अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में तमाम क्रॉप्स जो हैं वो इस दफ़ा बम्पर हुई हैं, खास करके कॉटन की, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस दफ़ा शायद पाकिस्तान कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट करे, जबकि सिंध ने भी अपनी तमाम जो क्रॉप्स की टारगेट्स रखे थे वो अचीव कर लिए हैं। इसके अलावा जो UAE की जानिब से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो भी हमें शायद चंद दिनों में एक अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएँ कि जो मुआहदे MOU पे साइन किए गए थे कुछ दिन पहले निगरान वज़ीर आज़म काकर साहब की जानिब से, अब वो शायद अमली तौर पर कुछ टाइम में ही हमें नज़र आना शुरू हो जाए, जिससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेहकाम मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स यही फील कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना जो है वो काफ़ी सेफ है, क्योंकि जहाँ पे भी अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन अब जो एक सर्टेनिटी है, स्टेबिलिटी है, इसकी वजह से काफ़ी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि गैर मुल्की लेवल पे भी लोग जो है वो पाकिस्तान में अब सरमायाकारी कर रहे हैं। जी अच्छा ज़मीर अब्बास, बताइएगा, अब चूँकि वीकेंड पर हमने देखा था प्रॉफिट टेकिंग हुई थी, थोड़ा सा मुस्बत और मनफी रुझान दोनों देखने में आया था, मिला जुला रुझान देखने में आया था। जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ बराह रास्त सरमायाकारी के हवाले से और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की वजह से भी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है, साथ ही साथ कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हैं, जो सियासी माहौल है या फिर सियासी इस्तेहकाम है, वो कितना किरदार अदा कर रहा है इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में और ख़ास तौर पर सरमायाकारी में? जी देखिए, इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाह रहा हूँ कि जब IMF और पाकिस्तान के दरमियान $3 अरब का मुआहिदा हो रहा था, तब IMF की टीम तमाम सियासी जमातों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने इस कर्जे की मंजूरी दी थी, जहाँ पे उन्होंने तमाम सियासी जमातों से, खास करके जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनसे एक अश्योरेंस ली थी कि अगर इलेक्शन आने के बाद और आम इंतखाबात के बाद जिसकी भी हुकूमत बनेगी, तो जो तसलसल होगा मुआशी पॉलिसीज़ का, वो इसी तरीके से जारी रहेगा जो कंडीशन हमने आपको बताई हैं। वरना अगले साल अगर आपने इस चीज़ की कोई नफी की तो फिर उसके बाद जो कर्जे के हसूल होगा उससे ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हमने देखा कि रवा साल कितना मुश्किल रहा IMF के साथ मुआहिदा करना, हम बैंकरप्सी की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब जो है उस अश्योरेंस के बाद इन्वेस्टर्स को ये कंफर्म हो गया है कि फरवरी में जो आम इंतखाबात होंगे उसके बाद जो भी पार्टी हुकूमत बनाएगी वो इन्हीं पॉलिसीज का तसलसल जारी रखेगी, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और इसी में ही पाकिस्तान की बका है और मुआशी इस्तेहकाम भी है। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। जहाँ तक पॉलिटिकल सिनेरियो की बात है जी, ये बहुत एक अच्छा और अहम कदम भी है कि जमहूरियत के तसलसल के लिए जब इलेक्शन की डेट आ गई। ज़मीर अब्बास नकवी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे और आगाह कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज की आज की परफॉर्मेंस के हवाले से। 773 से ज़्यादा पॉइंट्स, 773 एग्जैक्टली पॉइंट्स का इजाफा हुआ पहले एक घंटे में और 62,440 से ज़्यादा होगी स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्सेस। और बिल्कुल जनाब, अस्करी क़यादत और निगरान हुकूमत
हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत जो पाकिस्तानी हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट पाकिस्तान की मार्केट पे बढ़ता जा रहा है, एंड इट इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो अब वक्त हुआ है न्यूज़ अपडेट का। न्यूज़ अपडेट के बाद कंटिन्यू करेंगे सुबह पाकिस्तान। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। और अगर हम बात करें अपने प्रोग्राम के सेकंड आवर की, तो इट इज़ ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल, इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, क्या क्या हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। और कल 3 दिसंबर को अफराद बहम माजूरी यानी खसूसी अफराद का आलमी दिन, 32वां आलमी दिन मनाया जा रहा था। और इस दिन को मनाने का मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना है, स्प्रेड करना है इस बात को कि कितना ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर की इस्टेब्लिशमेंट उनके लिए, कितना ज़रूरी है जो हमारे माशरती रवैये होते हैं उनमें तब्दीली लाना। और डिफरेंटली एबल्ड पीपल को हम खुसूसी अफराद कहते हैं, और उनसे बर्ताव, उनका ख्याल रखना, फिर उनका पार्टिसिपेट करना सोसाइटी में कितना ज़रूरी है। कल इस हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात हुई पाकिस्तान भर में, मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स का इनेकाद किया गया ताकि लोगों को बताया जा सके। इसी हवाले से सुबह पाकिस्तान के लिए हसन फारूक ने एक खुसूसी पैकेज भी तैयार किया, एक रिपोर्ट तैयार किया, वो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 3 दिसंबर को माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में माजूरों को दरपेश मसाइल का उजागर करना और मुआशरे में इन अफराद की अफादियत पर जोर डालना है। इसी दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ निजी तंजीमों के इश्तराक से एक फैमिली गाला का इनाकाद किया गया, जिसमें न सिर्फ खुसूसी बच्चों बल्कि उनकी फैमिलीज को भी मदऊ किया गया। डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनको कौमी धारे में लेके आना और आम बच्चों के साथ लेके आना, ये बहुत चैलेंजिंग काम है। ये सोसाइटी ये काम कर रही है और इस सिलसिले में आज मुझे मदऊ किया गया है। आज हम इस एग्जीबिशन में आए हैं तो यहाँ पर डिसेबल बच्चों के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, और आप सबसे भी गुजारिश है कि जो लोग सेंसस में होते हैं उनके को तो आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो स्पेशल बच्चे हैं उन पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि वो सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन पर डिपेंडेंट ना हो और अपने लिए इंडिविजुअली कुछ कर सकते हों। तकरीब में सियासी और समाजी अफराद ने भी भरपूर शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई की। वो बच्चे जिनको अल्लाह ताला ने कुछ ज़्यादा इजाफी सलाहियतें दी होती हैं या कुछ उसमें कमी होती है, तो माशरे के अंदर, हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर इन बच्चों को एक बोझ समझा जाता है। हालांकि जितनी भी महज़ब दुनिया है वो इन बच्चों को एक स्पेशल प्रोटोकॉल फराहम करती है, इनको इजाफी सहूलियात देती है, इनकी तालीम, इनकी सेहत का ख्याल रखती है, इंश्योर करती है कि ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करें। तकरीब में शरीक स्पेशल बच्चों ने अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस को गजा के बच्चों के नाम किया। यहाँ पे ना सिर्फ ये कि हमारे बच्चों के आलमी दिन के हवाले से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी हैं और पेरेंट्स ने, स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स ने, बल्कि सोसाइटी के तमाम लोगों ने, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने यहाँ पे शमूलियत दी है। आज की इस तकरीब के इनेकाद का मकसद ना सिर्फ स्पेशल बच्चों की हौसला अफजाई करना है बल्कि इनकी सलाहियतों को उजागर भी करना है ताकि एक जिम्मेदार शहरी बनकर मुआशरे में बेहतर जिंदगी गुजार सकें। प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान के लिए हसन फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हसन की ये शानदार रिपोर्ट हमने देखी, और दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला की पैदा करदा, उनमें से हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो किसी भी किस्म की खसूसियात से खाली है। तो खसूसियात अल्लाह ताला ने अता की हैं और मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ तरह से अल्लाह ताला ने अता की। अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिनका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। चाहे हमें देखने की जो हिस्स है अल्लाह ताला ने अता की, समझने की, टेस्ट करने की, महसूस करने की, या फिर फैसला करने की भी, ये तमाम सलाहियतें अल्लाह ताला की दी हुई हैं। तो ये अगर किसी में सलाहियत कम है और किसी में ये ज़्यादा है तो ये तकसीम भी अल्लाह ताला की है। लेकिन हमारे फ़राइज़ क्या बनते हैं, हमारे
हुकूक क्या बनते हैं, उन लोगों के हम पर क्या हुकूक बनते हैं जिनको अल्लाह ताला ने किसी सलाहियत से महरूम रखा है और कोई सलाहियत उनमें इजाफी अल्लाह ताला ने अता की है, तो फिर हमारे रवैये क्या होंगे, ये डिफ़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जनाब, और रवैयों के साथ साथ अगर बात करें तो हमारी जो पॉलिसीज़ होती है वो भी बहुत मैटर करती हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड कर रहे होते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें हमने रैंप बनाना है, एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी लिफ्ट में ब्रेल होना ज़रूरी है ताकि जो बसारत से महरूम अफराद हैं वो भी उसको इस्तेमाल कर सकें, किसी और बंदे पे, किसी और इंसान पे डिपेंडेंट ना हो, अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली गुजार सके। कल का जो दिन था, आलमी दिन था ख़ुसूसी अफराद के लिए, उसका थीम भी यही था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो ऐसे अफराद हैं उनके लिए ऑब्वियसली हमने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो उनको प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं रिजवान जो कि बसारत से महरूम हैं और हमारा नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में और अफराद के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। और ऐसे ही एक शख्सियत आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। हमारे साथ प्रोग्राम में खालिद महमूद बाजवा साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन सदर हैं पाकिस्तान एसोसिएशन जो बसारत से महरूम अफराद हैं उनकी। खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया मानूर। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान टेलीविज़न का मशकूर हूँ कि इसने हमेशा रवायात को बरकरार रखा है और हम लोगों को जो है वो यहाँ आकर अपने नाजरीन और सामीन से गुफ्तगू का मौका दिया है। अच्छा बाजवा साहब, क्या समझते हैं एक दिन 3 दिसंबर मना लेना काफ़ी है? इसके अगराज़ व मकासद तो हमने बताए हैं, अपने नाजरीन को भी शेयर किए हैं, इस हवाले से रिपोर्ट्स भी चलती हैं, तकरीबात भी होती हैं, लेकिन एक दिन मना लेना ये इंसाफ करता है? रिजवान साहब, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम एक दिन मनाकर उस दिन तकरीबात मुनक़द करके बुलंदोबांग दावे तो कर देते हैं लेकिन फिर उसके बाद पूरा साल उन चीज़ों को भूल जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ख़ुसूसी अफराद के मसाइल को, इनके हकूक़ को और इनसे मुतल्लिक़ा जो भी मामलात हैं उनको हर वक्त, हर जगह और हर प्लेटफार्म पे जो है वो डिस्कस किया जाए, इनको हाईलाइट किया जाए और आवाम में अवेयरनेस पैदा की जाए। जब अवेयरनेस पैदा होगी तो ये ऑटोमेटिकली इनकी डेवलपमेंट और इनकी जो प्रोग्रेस है वो ज़रूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर हम देखें कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में बात की जाए तो अफराद बाहम माजूरी की शरह कितनी है, क्या ये रजिस्टर्ड है? जी बिल्कुल, मैं दुनिया की भी बताता हूँ और आपको पाकिस्तान से मुतल्लिक़ भी इसके शेयर करता हूँ। दुनिया में जो WHO की रिपोर्ट है उसके मुताबिक दुनिया के 7.8 बिलियन जो आबादी है उसमें मोर दैन 1 बिलियन जो है वो लोग किसी ना किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं। इनमें से ये इसकी जो शरह बनती है वो बनती है तकरीबन 15%। 15% का जो 80% है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है क्योंकि वहाँ सहूलतें कम हैं, वहाँ वसाइल कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, गुर्बत है, तालीम की कमी है जी। और इसके बाद जो है 10 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो डिसेबिलिटी में मुब्तला होता है। फिर हर 5 ख़वातीन में से कोई एक जो है ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर वो डिसेबिलिटी का शिकार जो है वो हो सकती है। और जो 60 अबव हैं लोग, उनमें 46% लोग छोटी या बड़ी डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं मुहस्सन आपको बताऊं कि 1981 के जो हमारे सेंसस थे उसके मुताबिक हमारी जो रेशो थी वो 0.43% थी। अच्छा, 98 वो डोर टू डोर थी। 98% में रैंडम किया गया और 1,90,00,000 हाउस होल्ड में से सिर्फ 12 लाख का डेटा लिया गया और उसमें 2.8% आई इसकी रेशो। ठीक है। 2017 जो इस वक्त डॉक्यूमेंटेड और इस वक्त अवेलेबल है उसमें जो हमारी 20 करोड़ 2 लाख आबादी थी उसमें 9,13,000 जो है वो डिसेबल जो है वो देखे गए। इनमें जो है वो 5,65,000 ख़वातीन थी, 3 मर्द थे, जबकि 3,44,000 ख़वातीन और 3,600 के करीब जो ट्रांसजेंडर थे। अगर हम सूबाई लेवल पे हैं तो पंजाब में सबसे ज़्यादा थे 5,15,000, KPK में 2,07,000, हमारे सिंध में 1,43,000, बलूचिस्तान और फाटा में ये तादाद जो है तकरीबन 21,000 है दोनों में, और हमारे फेडरल कैपिटल में ये तकरीबन 6,167 है। ये है हमारी जो है वो रेशो है ये पाकिस्तान में और दुनिया में स्पेशल परसेंट की, और ये बनती है हमारी
0.45%, जो कि 1981 के सेंसस के बिल्कुल करीब तरीन है। तो बाजवा साहब, एजुकेशन हो, मेडिकल साइंस हो, सफारतकारी हो, स्पेस हो, टेक्नोलॉजीज हो, हम देख रहे हैं कि डिफरेंटली एबल्ड लोग हर जगह पर कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद बेहतरी कैसे आ सकती है? इनको सोसाइटी को बेहतर करने के लिए इनसे क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि वो हर शोबे में काम कर रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्हें मौक़े फ़राहम किए गए या जिन्होंने मौक़े ख़ुद अपनी मेहनत से, कोशिश से हासिल किए हैं। अगर यही मौक़े बाकी तमाम लोगों को भी दे दिए जाएं, तो उनमें से भी हज़ारों की तादाद में ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे। अगर सफारती सतह पर बात की जाए तो क्या हमारे मुल्क की नुमाइंदगी एक वसारत से महरूम खातून ने नहीं की जनरल असम्बली में, UNO की में? बिल्कुल। अगर वो ये काम कर सकती है तो और हमसे आप लोग क्या तवक्को करते हैं? इससे बड़ी और क्या किरदार है जो कोई अपने मुल्क के लिए अदा कर सकता है? लेकिन यही मौके बाकी लोगों को भी दिए जाएं। हर ख़ानदान जो है वो इस काबिल नहीं होता कि अपने बच्चों की ग्रूमिंग कर सके। उसके वसाइल भी महदूद होते हैं, उसकी सोच का दायरा कार भी महदूद होता है। लिहाजा इसके लिए सोसाइटी को भी थोड़ा बहुत आगे आना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, उन बच्चों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, उनको जो है वो तमाम सहूलतें दी जाएं जिनको बरोकार लाकर वो आम बच्चों की तरह जो है वो परवान चढ़ सकते हैं। बिल्कुल बाजवा साहब, जिस तरह आपने पहले भी बात की ही कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। अफराद माजूरी भी, जो वसारत से महरूम अफराद हैं, वो भी अभी इनिशियल स्टेज पे आपको क्या लगता है? क्योंकि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, एक बहुत मैसिव इसमें फंड्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, बीइंग अ पर्सन के जो कि खुद इस चीज़ से गुजर रहा है, कि इनिशियली पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हमारे ऑफिसेस में? सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम एजुकेशन जो है वो हर स्पेशल बच्चे की अप्रोच तक पहुंचाएं। वो हमारे यहाँ अभी तक नहीं हो। बहुत से स्पेशल एजुकेशन स्कूल गवर्नमेंट ने कायम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पहले भी कायम हो चुके हैं और आइंदा भी हो रहे हैं, लेकिन अभी उस लेवल पर हम लोग नहीं पहुँचे कि रिमोट एरियाज़ के बच्चे जो हैं वो भी इनमें एडमिशन ले सके। लिहाजा सबसे पहली चीज़ जो किसी भी आम आदमी हो या स्पेशल बच्चे हों, और ख़ास तौर पर स्पेशल बच्चों के लिए एजुकेशन है, और दूसरी उनकी सेहत का ख्याल रखना है। हॉस्पिटल जो हैं वो करीब हों, उनके लिए इलाज की बर वक्त और मुनासिब सहूलतें हों कि अगर किसी को थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी है तो वो हो सकता है रिकवरी भी हो सके। फिर इसके बाद एजुकेशन के बाद अगर कोई एजुकेशन हासिल कर भी लेता है, पहली तो बात यह है कि कॉलेजों में दाखिले के लिए बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। तालीमी इदारे जो हैं पहले रिफ्यूज़ करते हो, बड़ी कोशिश के बाद जो है वो एडमिशन जो है वो मिलता है। खुद मेरे साथ मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर कोई शख्स एजुकेशन हासिल करने के बाद वो इस काबिल हो जाता है कोई जॉब हासिल करे, तो फिर जॉब के मसाइल पैदा हो जाते हैं। बावजूद इसके कि हमारे लिए कोटा जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है और इन लोगों को उसके मुताबिक भी जो है वो जॉब देनी चाहिए, हमारे इदारे जो हैं हेजिटेट करते हैं। ख़ास तौर पर प्राइवेट इदारे, कितने मालकान हैं जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियों में स्पेशल पर्सन रखे हुए हैं, अपने कारखानों में, अपने इदारों में, अपने ऑफिस में कितने लोग उन्होंने रखे हुए हैं। वो किसी एक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक 4 आदमियों के वैसे ही फारग फिर रहे हों, वो बर्दाश्त हो सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल पर्सन उनसे बेहतर काम करने के बावजूद उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा रोज़गार के लिए ये कंपल्सरी जो है इनको मजबूर किया जाए इदारों को कि वो हर साल अपना डेटा हुकूमत को पेश करें और उसके मुताबिक स्पेशल पर्सन की रिक्रूटमेंट जो है उसको इंश्योर किया जाए। बाजवा साहब, जो प्राइवेट इदारों की आपने बात की है, ये तो हमारे मजमूई तौर पर रवैये हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि किसी भी जगह पर कोटा मौजूद है, लेकिन अफराद बहा माजूरी का वो गलत फ़ायदा उठाते हैं और फिर उनका हक मारते हैं। कैटेगराइज कैसे किया जाता है इस चीज़ को, और जो आपकी एसोसिएशन है वो किस तरह से हेल्प आउट करती है ऐसे लोगों को रजिस्टर्ड करने में, फिर उनको उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? रिजवान साहब, ये सबसे बड़ी बात यह है कि बाज़ लोग इस तरह करते हैं। पिछले दिनों इस किस्म के केसेस पकड़े भी गए हैं कि बाज़ लोगों ने
ہیئرنگ امپیئرڈ اپنے آپ کو ظاہر کر کے تو اس قسم کی سروسز لی ہیں، لیکن یہ چیک کرنا کہ آیا کس میں کتنی ڈسیبلٹی ہے، یہ بات وہی ہے کہ بعض لوگ لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ایسٹا کوڈ میں اسپیشل پرسن کی کلاسیفیکیشن کر دی گئی ہے۔ صحیح۔ کلاس اے میں وہ لوگ آتے ہیں جو سویئرلی ڈسیبل ہیں، یعنی ان کو امپیئرمنٹ ہے کسی 2 آرگنز کی، 2 آئیز ہیں، 2 کان ہیں، ان کے دونوں بازو نہیں ہیں، دونوں ہاتھ یا پاؤں نہیں ہیں، یا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں نہیں ہے، وہ کلاس اے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ان کا کوئی ایک آرگن کام نہیں کرتا تو وہ کلاس بی میں ہے۔ اور کلاس سی میں وہ لوگ آتے ہیں کوئی جوائنٹ پین کی وجہ سے یا جن کو کسی بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اپنے کام میں مشکل پیش آتی ہے۔ لہذا اگر ریکروٹمنٹ کرتے وقت اس کلاسیفیکیشن کو ہی دیکھ لیا جائے، اور آج کل ہمارے ہاں حکومت پاکستان کی طرف سے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے، نیشنل کونسل فار دی ریہیبلیٹیشن آف دا ڈسیبل پرسن، صحیح۔ NCRDP، یہ ہے فیڈرل لیول پہ۔ پروونشل لیول پہ PCRDPs ہے، وہ باقاعدہ بورڈ میٹنگ کال کرتے ہیں ڈاکٹرز کی، اور وہ جو لیٹر، وہ جو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں، اس کی بیس پہ ملازمتیں جو ہیں وہ دی جانی چاہیے۔ صحیح باجوہ صاحب، جس طرح آپ اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں، نیشنل لیول اور پروونشل لیول پر بھی آپ نے ہمیں آگاہ کیا کہ آرگنائزیشنز ہیں، اب کتنا ضروری ہے افراد باہم معذوری کے لیے اس طرح کی آرگنائزیشنز میں اپنے آپ کو رجسٹر کروانے کے لیے، تاکہ کوئی ان کے لیے اپرچونٹی ہو، کوئی ان کے لیے ایسی فنڈنگ ہو، کوئی اسکالرشپ ہو تو ان کو پتہ ہو، آگاہ کیا جائے، اور خاص طور پہ یہ کتنا ضروری ہے فار دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف کنٹری؟ سب سے پہلے تو رجسٹریشن آج کل ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ سب سے اچھا جو ہو رہا ہے وہ نادرا میں جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ نادرا جو ہے وہ ان لوگوں کو NCRDP کے، گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ایشو کردہ میڈیکل سرٹیفکیٹس ہیں ڈسیبلٹی، ان کی بیس پہ ان کو ایک اسپیشل CNIC جو ہے جس کے اوپر ویل چیئر کا لوگو ہے وہ جو ہے ان کو ایشو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی بنیاد پہ یہ لوگ جاب کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور جہاں بھی ان کی شناخت کی ضرورت ہو ایز اے ڈسیبل پرسن تو وہ اپنا CNIC پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ جہاں تک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسی وقت آ سکتی ہے جب سسٹینیبل پروگرام جو ہیں وہ پیش کیے جائیں، بنائے جائیں ان کے لیے۔ یہ جو کیجول بیسس پہ ہم لوگ بنا لیتے ہیں جی کہ آج یہ پروجیکٹ شروع کیا 3 سال بعد وہ ختم ہو گیا، نہیں، جابز دی۔ سب سے ان کے لیے سسٹینیبل جو ڈیولپمنٹ وہ ہے ان کی ایجوکیشن اور ان کی جاب۔ آپ کسی اسپیشل پرسن کو جاب دے دیں، اس کو مناسب پے ملنے لگے، تو کیا وہ عام آدمی کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا؟ بالکل گزار اسے کیا ضرورت ہے ڈیپینڈنٹ بننے کی؟ تو جب ہم نے اس کو جاب نہیں دینی، ایجوکیشن نہیں دینی، ہم نے اس کو مواقع نہیں دینے، تو پھر وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کے حاصل نہیں کر سکتا۔ باجوہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ رویہ ہے فیملی لیول پر بھی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ یا بچی پیدائشی طور پر کسی طرح سے کسی ایسے المیہ کے شکار ہو گیا ہے یا کسی خصوصیت سے محروم ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر جیسے آپ نے کہا نادرا میں ڈیٹا بیس آ جاتا ہے، تو نادرا میں بھی نہیں، اپنے رشتہ داروں کو نہیں بتایا جاتا، نادرا کو کیسے بتائیں گے؟ کتنا بڑا کرائم ہے یہ، اور پھر اس فرد کی جو اللہ تعالیٰ نے مختلف خصوصیات اسے عطا کی ہیں اس کی نفی کرنا اس شخص کو انڈیویجولی کتنا اس کے لیے ایک خطرناک ہوتا ہے، اس کی جو کمزوری ہے اس کو مزید کمزور کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس کی کمزوری کو روکا جاتا ہے کہ یہ اس کی اسٹرینتھ نہ بن سکے؟ رضوان صاحب، یہ بہت بڑی بات کی آپ نے۔ ہمارے خاندان میں یہی پرابلم ہے سب سے، لیکن ہر خاندان کی بات یہ نہیں ہے۔ زیادہ تر ہمارے خاندان جو ہیں وہ اپنے اسپیشل بچے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے کتنے خاندان ہیں جو اس بچے کی ایجوکیشن کا بندوبست اس نہج میں کرتے ہیں جس نہج پہ وہ اپنے دوسرے بچوں کی جو ہے وہ ان کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہر خاندان، جیسا کہ میں نے کہا ہے، کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا، اس کے وسائل محدود ہوتے ہیں، اس کی سوچ ہی اتنی نہیں ہوتی کہ ہم نے اس بچے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ وہ ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں، بیکورڈ ایریاز میں رہتے ہیں۔ پھر خاندان کے لیے یہ بات، بعض لوگ اس کو ٹریجڈی لیتے ہیں، شیم فل لیتے ہیں، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔
तोहमात का शिकार खुद भी होते हैं और इर्द गिर्द के लोग भी उनको तोहमात का शिकार कर देते हैं कि ये तो आपके गुनाहों की सज़ा है, ये तो अल्लाह मियाँ की तरफ से पता नहीं आपको क्यों इस तरह का बच्चा जो है वो दे दिया गया है। लिहाजा ख़ानदान की सबसे बड़ी अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि हम हर जगह पे ये प्रोग्राम जो है वो मुनक़द करें और ख़ानदान को बताएं। और अगर ख़ानदान अपने महदूद वसाइल की वजह से ये ज़िम्मेदारी लेने से कासर है तो सोसाइटी को आगे आना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही बाजवा साहब कि अगर ख़ानदान कासिर है इस चीज़ से तो सोसाइटी को आगे आना चाहिए। वी आर सो प्राउड ऑफ़ यू। और हमें भी अपने माशरे में आप जैसे अफराद की ज़रूरत है जो कि आवाज़ बुलंद करें अपने लिए भी और अपने जैसे लोगों के हकूक़ के लिए भी, और ख़ास तौर पर इस माशरे को एक जो हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस के हवाले से बात करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जब हम तमाम जो अफराद बहा मजूरी हैं उनके लिए भी वही इकदाम करेंगे जो कि उनकी रिक्वायर्ड नीड्स है। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त बाजवा साहब। थैंक यू सो मच। स्टूडियोज़ में मौजूद रहे। और जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है मानूर, हमारी सबसे बड़ी माजूरी जो हम नॉर्मल लोग अपने आप को नॉर्मल कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी माजूरी ये है कि हमें अगर एहसास नहीं है तो। बिल्कुल जनाब, एहसास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सम टाइम हम अपनी बॉडी का भी जो एहसास है ना वो नहीं करते। रिजवान आपने सुना होगा, ज़्यादा भी कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा प्यार करना, ज़्यादा एहसास करना भी यू नो एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो होता ये है रिजवान कि हमें अक्सर ये कहा जाता है कि आप जो है एक्सेस नहीं होती, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मैंने क्या कहा है? आपने यही कहा है। यही कहा मैंने। सो बेसिकली होता ही है ना कि रिजवान, जब हम किसी से भी बात करते हैं तो हमें कोई बताता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स लेती हूँ, तो हम कहते हैं ठीक है मल्टीविटामिन्स लेती हो, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, क्यों ना मैं भी ओवर द काउंटर जाऊँ और कहूँ कि मुझे एक तो मल्टीविटामिन दे दें, विटामिन डी दे दें, कैल्शियम दे दें, और ऐसा करें कि B12 भी दे दें। क्योंकि मैं रूटीन में जो गूगल कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे में कम है। वो हमने शायद FSC में एक स्टोरी भी पढ़ी थी, अ मैन हु वाज अ डॉक्टर, मैट्रिक में। आज मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, A man who was a hospital, हाँ, a man who was a मानूर का hospital। इम्तिहान दोबारा से लेना पड़ेगा। आज रिजवान मेरी केमिस्ट्री का, मेरी इंग्लिश का और जो है ना मेरी फिजिक्स का भी इम्तिहान ले रहे हैं और मेरे पे बड़ा कड़ा टाइम चल रहा है। मेरे सर जो है वो साथ बैठे हैं और मेरा टेस्ट ले रहे हैं। सो बेसिकली रिजवान हम बात कर रहे थे मल्टीविटामिन्स के हवाले से। हमने सुना है कि मल्टीविटामिन सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन आपने कभी ये सुना है कि मल्टीविटामिन की वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है? डॉक्टर मोहम्मद मुनीब खान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रिजवान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बताइएगा, एक तो ये कि हम ये समझते हैं कि कुछ भी हम खा रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, चाहे वो ऑर्गेनिक है या फिर वो नॉन ऑर्गेनिक है। तो कैसे मल्टीविटामिन्स इंसान को कैंसर के खतरे से दो चार कर रहे हैं? ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है और मैं बड़ी मुख्तसर करके ये कहानी सुनाऊंगा जी प्लीज़। कि पिछली सदी में जब वाइटामिन्स का पता चला तो ये ख्याल पैदा हुआ कि ये इंसानी सेहत के लिए वाइटल है, बहुत लाजिम व मलजूम है सेहत और विटामिन्स का साथ होना। तो इस पर काफ़ी तहकीकात शुरू हुई। विटामिन्स पाए जाते हैं आपके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, मीट में, पोल्ट्री में, यानी खाने पीने की तकरीबन हर चीज़ में, कॉफ़ी तक के अंदर विटामिन्स पाए जाते हैं। तो जब तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि इनकी बहुत इफादियत है और इनको डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है कि ये ग़ज़ा के वो ख़ास अनासर हैं, एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो छोटी मिकदार में, मामूली मिकदार में चाहिए सेहत के लिए। और जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ मुख्तलिफ टेस्ट और ट्रायल किए गए, लोगों को फल और सब्जियां दी गई, तो ये पता चला कि उनके अंदर कैंसर और दिल के अमराज होने के इम्कानात कम हो जाते हैं जब उन्हें फल और सब्जियां रोज़ाना बाकायदगी से खाने को मिलें। तो जो कंपनियां थी जो सिंथेटिक मसनूई विटामिन बनाती थी, उन्होंने बहुत सारे मसनूई विटामिन बनाए, मार्केट में फेंके, और उन्होंने भी कहा साइंसदानों को कि इन पर भी तहकीक करके देखें कितना फ़ायदा होता है। तो जो तहकीकात हुई 1985 से लेके अभी तक, उन सबको मैंने जायज़ा लिया और रिजल्ट्स वगैरह सारे जमा किए, तो दो तरह के नताइज मिले जब लोगों को फलों सब्जियों के अलावा मसनूई विटामिन दिए गए। पहला तो ये कि उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और दूसरा ये नतीजा निकला कि उनके अंदर सेहत के मसाइल बढ़ गए, ख़ास तौर पे कैंसर होने के इम्कानात ज़्यादा हो गए। और इन स्टडीज़ को काफ़ी हद तक इग्नोर किया गया, और आज भी मल्टीविटामिन ओवर द काउंटर मिलती है, यानी इनके लिए आपको किसी डॉक्टर से नुस्खा लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट गो एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और आप जाके अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकते हो, जितना जी में आए खा सकते हैं। अब मैंने इस पे बहुत सारा काम करके डाटा जमा किया, स्टडीज़ देखी, मैंने किताबें 2 इस साल पब्लिश की हैं इस मौजू पे,
اور اس پہ باقی بھی کینسر کی تمام عوامل جن سے کینسر زیادہ ہوتا ہے ان پہ ہم نے بات کی ہے. اور وٹامنس کا بہت اہم کردار ہے. ابھی ریسنٹلی ایک بڑا امپورٹنٹ پیپر پبلش ہوا برٹش میڈیکل جرنل میں. اس سے پہلے بہت بڑے بڑے عالمی جریدے ہیں صحت کے, نیو انگلینڈ جرنل میڈیسن, لینسٹ, ان میں اسٹڈیز پبلش ہوئی ہیں کہ کچھ ایسے اسٹڈیز تھی جنہوں نے بتایا کہ 30% تک کینسر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں مصنوعی ملٹی وائٹامن کے استعمال سے. ہمارے ہاں خوراک میں غذائیت کی کمی نہیں رہی. پہلے وقتوں میں ہوا کرتی تھی, قحط پڑا کرتے تھے, لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. آج کل غذا وافر ہے. اگر آپ روزانہ ایک انڈا بھی کھا لیتے ہیں, ایک گلاس دودھ کا بھی پی لیتے ہیں, تو آپ کی تمام وٹامن منرلز کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. اس کے اوپر آپ جو بھی کھا رہے ہیں وہ بونس ہے. اور اب یہ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ کینسر ہونے کی وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ کیلوریز یعنی انرجی اور نیوٹریشن دونوں کی زیادتی ہے. بہت زیادہ کھانے سے کینسر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. صحیح منیب صاحب, آپ نے جو بات کی ہے وہ ریسرچ کے حوالے سے کی ہے. میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ریسرچ آتی ہے, اگلے ہفتے دوسری ریسرچ اس کو نگیٹ کر دیتی ہے, ایک اور ریسرچ آتی ہے, پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیونکہ ہمارا میڈیکل فیلڈ سے تعلق نہیں ہوتا کہ کون سا اتھینٹک ادارہ ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, صرف اس کی پڑھنی ہے, یا جو نارمل ریسرچ سینٹرز ہوتے ہیں ان کی بھی ہم نے ریسرچز پڑھنی ہے. اس میں یہ مینشن تھا کہ جو پاکستانی ہیں ان میں سے 99% لوگوں میں آلریڈی وائٹامن ڈی کی کمی ہے. وائٹامن ڈی ایک ایسی چیز ہے, اور پھر ہماری پالیسیز بھی ایسی ہیں کہ اوور دا کاؤنٹر ملتا ہے, لوگ لیتے بھی ہیں. تو اب یہ والی جو چیزیں ہیں, یہ کیا اگر ہماری باڈی جو ہے وائٹامن ڈی صورت سے نہیں لے سک رہی, تو پھر کیا ہمیں پراپر اس کے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے, یا ہم اوور دا کاؤنٹر جا کے کچھ نہ کچھ تو لے سکتے ہیں؟ جیسے اب روٹین کی پریکٹس ہے, کیلشیم لے رہے ہیں, وائٹامن ڈی لے رہے ہیں, یا آپ یہ اسپیسیفک کسی ملٹی وائٹامن کی بات کریں 2-3 کی, یا یہ آپ سارے ملٹی وائٹامنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ابھی تک کسی بھی وائٹامن کے, مصنوعی وٹامن کے فوائد کینسر ریڈکشن یا ہارٹ ڈیزیز میں نظر نہیں آئے. وٹامن ڈی پہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے نہ تو کوئی فائدہ دیکھا گیا ہے, نہ کوئی کینسر کی مد میں نقصان دیکھا گیا ہے. لیکن وٹامن ڈی جسم کے اندر جا کے آپ کے جسم کی چربی میں جمع ہو جاتا ہے. آپ جتنا بھی کھاتے ہیں وہ زیادہ تر جمع ہو جاتا ہے, اور اگر اس کی مقدار آپ کی نارمل کیپیسٹی سے بڑھ جائے تو اس کو کہتے ہیں ہائپر وٹامنوسس ڈی. یہ آپ کے گردوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے, آپ کے جگر کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے, اور بچوں میں یہ ذہنی نشو و نما کو بھی سلو کر سکتا ہے اور کم بھی کر سکتا ہے. تو وٹامن ڈی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پہلے تو اپنے وٹامن ڈی لیول چیک کروائیں کتنی کمی ہے, پھر اس کے مطابق ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ اس کی مناسب مقدار پراپر ڈوزج لیں. پھر 3 مہینے بعد دوبارہ ری چیک کروائیں, اگر لیول نارمل ہو گئے ہیں تو اسے بند کر دیں. لیکن اس سے بھی آسان طریقہ ہے, وہ یہ کہ آپ سورج کی روشنی میں نکلیں. آپ کی جسم کی جو جلد ہے وٹامن ڈی بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, اور یہ کبھی بھی ضرورت سے زیادہ وٹامن ڈی نہیں بناتی. اگر آپ کی جلد نے اتنی وٹامن ڈی بنا دی جس کی مقدار آپ کے جسم کو چاہیے, تو وہ مزید بنانے کے کام کو روک دیتی ہے. لیکن ڈاکٹر منیب یہاں پہ سوری آپ کو ٹوکنا چاہوں گی, یہاں پہ یہ بھی تو ہے کہ وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ کوئی انیکسپینسو ٹیسٹ نہیں ہے. میں نے ڈاکٹرز کو خود یہ بھی کہتے سنا ہے کہ کیا ٹیسٹ کرانا ہے, باڈی میں پین ہے, وائٹامن ڈی کے کیپسولز لے لو. پھر ہمارے رجحان بھی یہ ہے کہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے, ہم بار بار ڈاکٹرز کے پاس جاتے نہیں ہیں. جو ایک دفعہ پرسکرائب کی ہمیں چیز, وہ پھر ہم مہینوں لے کے چلتے رہتے ہیں, اور اس کے ایڈورس افیکٹس ہوتے ہیں ہماری کڈنی پہ بھی. تو یہ پراپر اس کے لیے کوئی میکینزم کی تو ریکوائرمنٹ ہے نا؟ یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. میں مشورہ دوں گا کہ آپ ڈاکٹر صاحبان کو کہیں کہ فیس میں کمی کر دیں اور وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروا دیں. کم از کم علاج میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, وہ اپنی فیس میں کمی کر دیں. اگر آپ ڈاکٹر کو اتنے مہنگے پیسے دے کے ان سے کنسلٹیشن کروا رہے ہیں, تو پھر ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کا مکمل, مناسب, صحیح طریقے سے علاج کرے. اور وٹامن ڈی کے ٹیسٹ اب اتنے مہنگے نہیں رہے پاکستان میں. آپ جب کیلشیم چیک کرتے ہیں نا اپنا, اور کیلشیم ہر کوئی چیک کراتا ہے, تو اسی میں بون پروفائل میں وٹامن ڈی بھی انکلوڈ ہوتا ہے. آج کل تو گھر میں آ کے کر دیتے ہیں. لیکن میں ایک اور بات کہوں گا, بلکہ 2 باتیں کہنا چاہوں گا. نمبر 1 یہ کہ اگر آپ نے آج آپ کے ڈاکٹر نے پیسے بچا لیے آپ کے وٹامن ڈی کا ٹیسٹ نہ کروا کے, اور کل کو آپ کی گردوں یا جگر کو نقصان پہنچ گیا, تو اس کا علاج زیادہ مہنگا ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ, ہمارے ہاں وٹامن ڈی کی سب سے بڑی کمی, انتہائی معذرت سے کہوں گا, وہ ہمارا ہے انفیریورٹی کمپلیکس, کہ دھوپ میں نکلے تو رنگ کالا ہو جائے گا.
बिल्कुल, that's very लड़कियां भी नहीं important. निकलती, मर्द भी नहीं निकलते, और दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन डी की कमी सऊदी अरेबिया में है। वो लोग दिन को निकलते ही नहीं गर्मी की वजह से, वो सिर्फ रात को आते हैं। तो विटामिन डी की कमी हमारी अपनी गलती से है। कुदरत ने तो अता की है, धूप अता की है, और उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रा एफर्ट भी नहीं करना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीब खान, बहुत कीमती गुफ्तगू आपने की। आप हमारे साथ रहे सुबह पाकिस्तान में। और मानूर, जो खुद से अद्वियात का इस्तेमाल है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर डॉक्टर से मशवरा करें। फिर बाज़ औक़ात होता है कि हमें एक डॉक्टर पे इतना एतबार होता है कि हम सेकंड ओपिनियन नहीं लेते। अगर वो डॉक्टर है क्लिनिकल, अगर वो मेडिकल ऑफिसर हैं, वो सिर्फ दवाई देते हैं, हम चाहते हैं हम सर्जरी भी उनसे करवाएं और साइकोलॉजी का अपना इलाज भी उनसे करवाएं। अच्छा, डॉक्टर्स पर तो एतबार एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें आपस में भी एक दूसरे पे इतना एतबार होता है कि जो तुम दवाई बता रही हो वो सही बता रहे हो। सो जब हम बात करते हैं अपनी एक दूसरे के रिश्तों के हवाले से, जो हमारे एक दूसरे एतबार के हवाले से जो एसोसिएशंस होती हैं, तो सुबह पाकिस्तान में हमने हमेशा पाकिस्तान की सकाफ़त के रंग के बारे में बात की है, जो खूबसूरत रंग है, चाहे वो लोक मेलों की उस पर हो एक रीज़न की वजह से, चाहे वो जो हमारे प्रोग्राम्स में दस्तकार आते हैं, फ़नकार आते हैं, उनकी गायकी हो, उनका आर्ट हो। लेकिन अगर बात करें कल की, यानी कि 3 दिसंबर की, तो 3 दिसंबर को सिंध भर में सिंधी सकाफ़त से मोहब्बत करने वाले लोगों ने योम सकाफ़त मनाया, लेकिन सिर्फ सिंध भर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में। सो रिपोर्ट इस पर तैयार की है हिना सरवत ने, एक बहुत ज़बरदस्त सी, आइए देखते हैं। सिंधी सकाफत में सिंधी टोपी और अजरक को सिंधी बासियों के वकार और इज्जत की अलामत समझा जाता है। यही वजह है कि हर साल दिसंबर के पहले इतवार को मुल्क भर में सिंधी योम सकाफत भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जाता है। इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के ज़ेरे तमाम एक तकरीब में हर सू सिंधी सकाफत, म्यूज़िक और रक्स के रंग बिखरे नजर आए। इस तकरीब का खास उन्वान सिंधी सूरमियों यानी बहादुर ख़वातीन पर मबनी था। इस तकरीब के मेहमानान खुसूसी निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंगी और निगरान विफाकी वज़ीर बराए तालीम और नौजवानान अमूर मदद अली सिंधी थे। तकरीब में आए मेहमानान खुसूसी और शुरका से बातचीत का अहवाल हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की जो कदीम सकाफ़तें हैं उनमें सिंधी सकाफ़त का तो अपना एक अंदाज़ है और लोगों को उसका शऊर भी है। ख़ास तौर पर जो सिंधी बोलने वाले लोग हैं उनको अपनी सकाफ़त पर फ़ख्र भी है और उसके इजहार की ख्वाहिश भी है। मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान की और जो सकाफ़तें हैं, ज़बानें हैं, जो पाकिस्तान की ही ज़बानें हैं, ख़ास तौर पर पंजाबी है, सराइकी है, बलोची है, ब्राहवी है, पश्तो है, पहाड़ी है, गोजरी है, पोठवारी है, हिंदको है, इन तमाम ज़बानों की तरवीज वो पाकिस्तान की ही तरवीज है। हमें फ़ख्र है कि मोहनजोदड़ो में हमने उस वक्त 5,500 साल पहले भी, जो भी 7,000 साल कहते हैं, उसकी वहाँ तहजीब देखें और वहाँ के रहने का अंदाज़ देखें तो हैरत होती है कि दुनिया जब अंधेरे में डूबी हुई थी तो हम कहाँ थे। हम सिंध के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को मोहनजोदड़ो पे जितनी भी फ़ख्र करना चाहिए वो कम है। सूरमियों का मतलब है कि एक सिंध की बहादुर औरत है और इसको शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की 7 सूरमियाँ है जिससे हमने इंस्पायर होकर ये हमने नाम रखा है ना। मैंने आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर कल्चरल डे मनाया है और हम हैदराबाद में ज़्यादातर मनाते रहते हैं, लेकिन वहाँ की निस्बत यहाँ पर बहुत लोगों को दिलचस्पी है और बहुत यानी कि उनको जोश खरोश है कि लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए। जी, हिना की रिपोर्ट आपने देखी और सिंध कल्चरल डे के हवाले से और ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर बात की गई। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुलनाज़ शेख साहिबा, जो कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज भी किया था इवेंट को। भली करी आए हो, बिल्कुल ठीक है, ता खुश आयो। रिजवान की सिंधी जो है ना यहाँ पे स्टॉप हो गई। आई रियली लाइक यू गुलनाज़ फॉर दैट, थैंक यू सो मच रिजवान। ना पहले मेरा टेस्ट ले रही थी तो आपने आके ना वो वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक होता है ना जज्बा, उसको उजागर कर दिया। गुलनाज़, बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया सिंधी कल्चर के हवाले से, डिग्नेटरीज ने ज्वाइन किया। ये इवेंट कितने ज़रूरी हैं अपने कल्चर के फ़रोग के लिए? देखिए, कभी मैं लोगों से जब बात करती हूँ ना, जब कल्चर की बात करते हैं, मैं अक्सर फेसबुक पे लिखती हूँ आई एम प्राउड टू बी सिंधी एंड यू, ऐसे करके तो आगे से आई एम पंजाबी, इस तरह का आते हैं ना, तो कुछ बीच में से इंटेलेक्चुअल निकलते हैं वी आर पाकिस्तानी। लेकिन तो पाकिस्तान इन सब रंगों को बन के बना है ना, मिल के बनाया गया है। पाकिस्तान कोई अलग से चीज़ तो नहीं है ना, उन रंगों को अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। हम सब पाकिस्तानी हैं, तो उसी जज्बे के तहत
हम जिस जिस धरती से हैं, कल बल्कि मैंने ऐसा किया, मैं थोड़ा सा कल्चर से एक स्टेप आगे इस तरह से निकलती हूँ कि मैंने कल एक पैनल डिस्कशन भी कराया उसके अंदर। अदरवाइज़ हमें समझा जाता है कि कल्चर खाने और रक्स और यही सब कुछ कर रहा है, वो एक सेलिब्रेशन का तरीक़ेकार है। इन दिनों को मुझे लगता है कि हम बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। तो उस पैनल डिस्कशन में मैंने एक पंजाबी खातून को बुलाया, एक पश्तून को बुलाया, एक हज़ारियन को बुलाया, हमारे इस तरह काफ़ी सारे कल्चर्स को जमा किया और उन सब से उनके कल्चर की सिमिलरिटी सिंधी कल्चर के साथ और बेसिकली इंडस सिविलाइजेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि उस वक्त की मौजूदा सारी सिविलाइजेशन से ज़्यादा पीसफुल थी। बिल्कुल। उस वक्त जितनी सिविलाइजेशन थी वहाँ पे लड़ाइयाँ और इस तरह के एविडेंस मिलते थे, लेकिन इंडस सिविलाइजेशन में नहीं मिलते थे। और आज हम दूसरों की चीज़ें अडॉप्ट करके तो हमारे यहाँ लड़ाइयाँ पड़ी होती हैं, तो हमें लगता है उस चीज़ को हमें रिवाइव करना चाहिए। इसके लिए तो गुलाम साहब अब बहुत ज़रूरी है कि हम वो जो इंडस सिविलाइजेशन है उसका पैगाम पहुँचा सके। अब सिंधी शायरी की बात करें, सिंधी अदब की बात करें, सिंधी मूसीकी की बात करें, रहन सहन, खाना पीना और फिर जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रहती थी एक साथ, ख़ासतौर पर कोस्टल लाइन पर भी और दरिया सिंध के किनारे भी, तो ये सारे पैगामात अगर हम दूसरे कल्चर्स तक पहुंचाएंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा उसका। यही मकसद था इस्लामाबाद में, नहीं तो सिंधी कल्चर मनाने का क्या मकसद था। और जो हमारे दोस्त आए वो आने वालों को जो है वो कह रहे थे हमारे सिंधी दोस्त जो हैं आए हुए हैं, तो इस तरह मैंने कहा सिर्फ सिंधी नहीं आए हुए हैं, यहाँ हर कल्चर आया हुआ है और उन लोगों ने ज़्यादा इंजॉय किया। मेरा जो कल्चर है मुझे तो पता है, मैं उसमें पैदा हुई हूँ, आपको समझना ज़रूरी है। बिल्कुल। जैसे हमने पिछले दिनों भी किसी फोरम पे थे हम, तो हम बात कर रहे थे अजरक हमारी बड़ी मशहूर चीज़ होती है, लेकिन आपको ये पता होगा या मैं जो है नाज़रीन को भी बताना चाहूँगी कि जो अजरक है वो सर पे ओढ़ेंगे, मतलब हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक वो बड़ी ताज़ीम उसकी होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग सर पे ओढ़ते हैं, कहते हैं कि जी कोई इंसान खून कर दे ना तो अपनी 7 बच्चियां या 7 ख़वातीन लेकर और अजरक लेकर किसी घर में आ जाए तो उसके खून माफ़ कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो सर पे ओढ़ने की चीज़ है। उसके बाद अब जब ट्रेंड चल रहे हैं, फ्यूजन्स हो रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका कुर्ता बना लेते हैं। हम कभी भी उसके डिज़ाइन को चप्पल में नहीं डालेंगे, हम ट्राउज़र्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अक्सर लोग जब बनाते हैं तो अजरक ज़्यादा फैसिनेट करती है तो पूरे सूट बना लेते हैं लोग, तो हम काफ़ी उनको कहते हैं कि इसकी जो अज़मत हमारे पास है उसको रहना चाहिए। ये उन लोगों को तब पता चलेगा जब हम बताएंगे, और जब उनको पता चलेगा कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, क्या रीज़न है, क्यों रिस्पेक्ट दी जाती है। आपने इस इवेंट में वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी बात की, पैनल डिस्कशन भी कराई। ये बेसिकली कल्चर का हिस्सा है। सिंधी जो खवातीन है दे आर वेरी एम्पावर्ड, फाइनेंशियली भी देखा जाए, जिस तरह वो घर में दस्तकारा है, काम कर रही हैं, और इसके साथ साथ सिर्फ वो घर में काम नहीं करी बल्कि उसको मार्केट तक भी लेके जा रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का एक अंसर नजर आता है सिंधी कल्चर में, पीस एंड हार्मनी के साथ साथ। बिल्कुल कितना ज़रूरी है इसको फ़रोग देना। बहुत ज़्यादा। इसका स्टार्ट भी इसी तरह हुआ ना कि हम लोग कुछ जो खवातीन हैं वो मर्दों के साथ साथ जो इवेंट्स होते हैं हम चले जाते हैं, लेकिन वहाँ ख़वातीन की बहुत कमी नज़र आती थी। एक कल्चरल डे में मैं गई तो वहाँ सारे रक्स कर रहे, मैं नहीं कर पाई क्योंकि सारे मर्द थे। तो वहीं से फिर मैंने 2-4 ख़वातीन को जो है ना कॉल किया, अपने दोस्तों को, और मैंने कहा यार ख़वातीन का कल्चरल डे मनाते हैं। हमारे पास पैसे कोई नहीं थे, अभी भी नहीं थे, हमने सारा स्पॉन्सरशिप पे किया है। तो हम गए और हमने कहा, वो कहते हैं अब क्या करेंगे, पैसे नहीं है। मैंने कहा कॉल दो और कहो कि कल्चरल पिकनिक करते हैं, सारे अपने घरों से खाने बना के लाएं। और वो इतना ज़बरदस्त हुआ। F9 पार्क में हमसे किसी ने पैसे लिए नहीं, और हमने इधर उधर जो दरख्तों को है वो अजरक से पहनाई, बलून लगाए और हम लोग खड़े हो गए नाचने गाने, और मीडिया भी आई। सेकेंड ईयर भी ये किया। इस दफ़ा सारी दोस्तों ने कहा कि जी हम फैमिली फेस्टिवल करते हैं। और सारी बहुत अच्छी चीज़ जो यहाँ पर मुझे जो अच्छी लगती है अपने इस ग्रुप की, वो ये कि मैं वेमेन एक्टिविस्ट भी हूँ, और हम लोग जाते थे पार्लियामेंट के सामने औरतों के हकूक़ के लिए जाके खड़े होते थे। आते जाते मर्द और ख़वातीन जो गाड़ियों में जाते थे ना, हमें वो एलियंस की तरह देखते थे कि ये पता नहीं किस जहाँ की बात कर रहे हैं, वो शामिल नहीं होना चाहते थे। इसी तरह जो वो एक होता है ना, एक डिस्कनेक्ट था आम औरत में और एक्टिविस्ट औरत में। तो मैं कहती थी बात हम इनकी करते हैं, ऑनर किलिंग इनकी हो रही है, हमारी नहीं हो रही है, ठीक है, तशद्दुद इनके ऊपर हो रहा है, हमारे ऊपर नहीं हो रहा है, लेकिन बात हम कर रहे हैं, ये हमसे नफरत कर रही है क्यों। उस गैप को समझते हुए फिर मैंने हाउस वाइफ को टारगेट किया। इस वक्त हमारी जितनी भी मेंबर्स हैं ना, सारी हाउस वाइफ्स हैं। बच्चे जो हैं वो खींच रहे होंगे उनको, लेकिन वो वहाँ पे अपनी बात रखेंगी, और उनको ये इजाज़त है आप मीटअप्स में आओ, अपने बच्चे ले आओ,
ठीक है, And that's very important. जी बिल्कुल, आप बच्चे लेके वो पहले परेशान होती थी, हम कहते नहीं आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे, आप अपनी बात रखो। हमने उनके लिए एक न्यूज़लेटर बनाया कि वहाँ पे आपकी शायरी कहती है, मैं बहुत पहले शायरी करती थी, भूल गई, मैंने कहा अब इसके अंदर गुलनाज़ साहब, अब सिंधी सकाफत के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त जो चैलेंज दरपेश है, जैसे हमें माहौलियाती तब्दीली का एक चैलेंज दरपेश है, ऐसा एक कल्चरल चेंज जो है उसका भी एक चैलेंज है। ग्लोबल विलेज बन गया इंटरनेट के आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद, और बहुत जल्दी असर लेती है खासतौर पर नौजवान नस्ल। बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और फिर जो अपनी बेसिक्स होती हैं, जो अपना कल्चर होता है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कहते हैं कि नहीं ये हम अगर बताएंगे तो शायद हमें क्रिटिसाइज किया जाएगा या फिर लुक डाउन किया जाएगा। तो क्या इसके प्रोटेक्शन के लिए कितना ज़रूरी है कि अपनी वैल्यूज़ आने वाली नस्ल तक ट्रांसफ़र करना? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये हमारे नौजवान जो वहाँ पे आप देखेंगे इसमें ज़्यादातर नौजवान हैं, उनसे सवाल किया गया, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया इसको कि जो कल्चर का हम वो डाउन साइज दिखाते हैं ना, कि जिसके अंदर मतलब इतना कोई फैशन नहीं है और वो कोई ओल्ड फैशन चीज़ है इस तरह की कि उसके अंदर उसको लोग पेंडू, एक लफ्ज़ पंजाब में कहा जाता है, वो कहते थे। लेकिन इस्लामाबाद में हमने जिस तरह से उसको मनाया, हमने सोशल मीडिया पे भी लाया, हमने वो सारे ट्रेंड्स आपके जो बच्चे जहाँ पर हैं, ट्विटर है आपका, सोशल मीडिया जहाँ पे बच्चा रहना चाहता है, तो बच्चा उसको बहुत अच्छा फील कर रहा है, जो यंगस्टर्स हैं उसको बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, उसमें शामिल होना चाह रहे हैं। तो मैं उसका इलाज में समझती हूँ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के मौके दिए जाएँ हमारे बच्चों को, उनको जब पता चलेगा तो वो आगे लेकर जाएंगे। सही, लेकिन गुलनाज़ साहिबा अब देखा जाए जिस तरह रिजवान ने भी बात की कि ग्लोबल विलेज बन गया है, पहले जो हाथ से अजरक बनाई जाती थी अब वो मशीन से बन रही है, पहले जो रेली बनाई जाती थी टाइम लगता था 2-2 3-3 महीने, अब वो मशीन से बन रही है। इसी तरह वो जो सिंध के कल्चर के हवाले से बात करें, बे का अचार, चिबड़ का जो अचार है, ये सारी चीजें अब तो पका के फौरन बन रही हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसमें कितना मुश्किल है इस चीज को प्रिजर्व करना? अच्छा देखिए, हम अगर कहें ना कि हम उस सदी में रहें, उसी तरह होता रहे, ये सोचना हमारा गलत होगा फिर, ठीक है। हम आगे भी बढ़ रहे हैं। हम कल भी मैं बात कर रही थी कि इंडस सिविलाइजेशन उस वक्त सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी, और उसके लोग कितने थे, पॉपुलेशन कितनी, 40,000 लोगों की, और सबसे बड़ी थी, ठीक है, क्योंकि सब जो सिविलाइजेशन उस वक्त एग्जिस्ट करती थी वो 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं होते। अब हम करोड़ों में, अगर हम ये कहें कि एक रली बना बना के हम उनको पेश करते रहेंगे, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। उसके रंगों को पहुंचाना, उस चीज़ को पहुंचाना ज़रूरी है, उस आर्ट को पहुंचाना, उस आर्ट को पहुंचाना ज़रूरी है। वो भी कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव है कि हर किसी के बस में नहीं है उसको। गुलनाज़ साहिबा बहुत शुक्रिया, और जो आप कर रही हैं इसी जज्बे के साथ, इसी हिम्मत के साथ करती रहें, और इसी तरह से जो पाकिस्तान के रंग हैं, जिनमें से एक रंग सिंध का भी है, पंजाब का भी है, उन रंगों को जोड़ते रहें, खैबर पख्तूनख्वा और साथ साथ बलोचिस्तान, कश्मीर, बल्तिस्तान। बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में हमारे साथ रहीं, और मुझे तो हैरान कर दिया, आपको चिबड़ के अचार का पता है? जी बिल्कुल मुझे पता है, रिजवान आज सुबह से मेरा टेस्ट ले रहे हैं और अभी मुझसे जो है ऑन स्क्रीन पूछेंगे भी कि चिबड़ का अचार क्या नो मोर क्वेश्चंस, नो मोर गुफ्तगू, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बिल्कुल जनाब, अपनी मेजबान महानूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाजत दीजिए। कल सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, बशर्त सेहत, बशर्त जिंदगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।